I'll make him the host. He will take the session and then लास्ट में सेशन का बाद जो भी एक दो क्वेश्चंस मेरा भी है वो सब क्वेश्चंस हम लोग ऐसा करके कर लेगा ना. तो ही विल डू द थिंग्स इन डिटेल एंड देन आप लोग भी जो क्वेश्चन है बाद में लिखते जाइए. लास्ट में उस चीबू एक एक करके देख के उसको भी आंसर कर देगा. ऐसे करके कर लेगा ना. दैट्स फाइन ना चीबू. Yes, yes, it's fine. ओके ओके. देन अभी हम चीबू को होस्ट बनाता है. Okay. चलो चीबू, द स्टेज इज योर्स. ओके. Okay, thank you so much, sir. Okay. Yes, hello everyone. My name is Chibi Lombi. I am from Pira village under Tirvin Circle, La Parada district. And this year, fortunately, by God grace, I've managed to secure rank 7 in APPSC exam. So first of all, I would like to thank our mentor, Natum Doke sir, for providing me this platform through which I'm able to reach out many people and future aspirants. And also, secondly, I would like to extend my uh, heartfelt gratitude, congratulations to all the successful candidates this time. I hope we as a team in different spheres and different fields that will work hard with honesty and integrity and work for the development of our state and as well as for the nation. Thirdly, my heart goes to the people who could not clear this time. So don't worry, if you persevere. I have been in your stage as well. I have, after my failure, I have seen toppers talking like me. I was in the same stage like you. So don't feel demotivated. This is a part of our journey. So remember that we will surely make it. So also coming back to Nyatum Loke sir, I would like to thank him. He has been my guide since my graduation. I did my graduation from NERIS in the year 2020. It has been a long journey. Uh, he has been my mentor. I started because in my family and in my entire clan as well as in my village, there has been no civil servant so far. So I laid guidance, and fortunately, that time Yatin Doke sir started providing guidance to the people like us. So I was very fortunate that I met him at the right time, and he guided me throughout the journey. I've been his student, and I have been taking guidance whenever I'm down. I used to talk to him and seek his guidance. So I would like to really, from the bottom of my heart, I would like to thank Natum Doke sir for standing with me throughout this journey. And also, he has provided me several times financial help through several programs, which has immensely helped me in sailing through this exam. Because I'm also not, let me tell you clearly that I'm also not from a very good stable background. So I have had some financial issues also. Through various programs, I managed to keep up this journey so far. So इसलिए अगर आप लोग को कुछ होता भी है, कहीं अगर आप लोग को लगता है कि that one has to be from very good family or good background और बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, ऐसा सोचने से don't feel like that. We all are from, Arunachal is mostly a tribal based state, and we many of are still managing to get the first ये फर्स्ट टाइम ये सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहा है. तो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम. तो अच्छे से वही है हम लोग का ये है. डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि दूसरा लोग तो बहुत दिल्ली से पढ़ रहा है, ये कर रहा है. डोंट गेट थिंक लाइक दैट. I have entire my schooling. I did my schooling initially from the village, from my mother's village itself, Ravidoke Middle School, and soon after that, I also did schooling in Sangiladin Sports Academy, and then not ladies. So most of my life I've been in a hostel and in government school only. So don't think कि आपको कुछ प्रॉब्लम ये है. Don't get demotivated, क्योंकि at last अगर आप दिल से चाहेगा तो पूरा कायनात आपसे मिलाने के उसमें लाइक ऐसे भी सेड लग जाते हैं. तो आप दिल से कीजिए. तो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट माय बैकग्राउंड. So I'll share some strategy. This is firstly I'll make a request ki please kindly take our words in a positive way. If there is, be considerate, as the people candidates who are sharing our journeys and experiences. We all are somehow we all have been hibernating for quite long time. हम लोग भी ऐसा ही
हॉस्टल ये आइसोलेशन में ही रहा है. And then in from libraries to libraries, we all were hibernating, and we didn't get the chance. We are not expertise in public speaking and taking a session like this. So kindly be considerate if I say something wrong, and take it in a positive way. I just want to share my experience so that you also can learn something from me, as I have learned from Natun Doke sir in my initial days. So my session will be about firstly about my journey. थोड़ा हाईलाइट कर देगा. सो नटुन दोके सर टोल्ड मी टू थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए बोल के जर्नी अबाउट द जर्नी, सो दैट people also will know about how this civil service preparation journey is about. Secondly, what we should do. My strategy means different strategy, obviously. So my strategy, how was my strategy? I'll share with that. And thirdly, we hardly talk about the issues that we go through. हम लोग का क्या क्या इश्यूज रहता है हम लोग का सिविल सर्विसेज जर्नी में. तो ये आप लोग भी काफी फील किए होंगे ऐसे जर्नी में. आपको लगता है कि आई एम द ओनली वन, ऐसा फील करेंगे. इसीलिए आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, मेरा जो इश्यूज है रहा है आप लोग के साथ, ताकि आप लोग भी काफी हद तक फील करने के लिए कि ऐसा होता है. दिस इज नॉट ए न्यू थिंग. uh, even the successful candidates, they go through this process, and आप लोग भी it's a part आप लोग को ये महसूस कराने के लिए. Thirdly, about the optional choosing in our FPCS exam. So many times we are very confused in our initial days कि क्या करें हम, कौन सा optional है और क्या क्या. वो मैं भी बहुत ऐसा I have gone through this confusion for quite long time. So I'll try to provide the data of our recently concluded exam. Through these data, I'll try to share क्या क्या optional आप लोग के लिए है अच्छा है, and also the book list for prelims and mains. What are the test series you can opt for, and how to make notes. I'll provide a PPT kind of कि किस तरह आपको notes बना सकते हैं. हम भी I have highlighted some my notes. उसमें किस तरह हम notes बनाए हैं for the final. तो आप लोग रहिए till the last so that I can tell कि किस तरह मैंने भी notes बनाए हैं. I'll show that also. And also about the history, I've been managing to get a very decent score in the history. In 2020 also, I managed to get around 310, more than 310 plus in history option. 2020 के 20 समय में. And in 2024 also, from the history, I'm the topper this year. So I'll share my strategy also about the history option. So I'll begin with the strategy. What I feel is that आप लोग को सबसे पहले हम लोग सब बोलता है कि you have to know about the UPSC. You have to know about like syllabus and all. Firstly, what my experiences and what I believe is आपको सबसे पहले you have to know about yourself first. आप खुद को ही नहीं जानता. For example, just एक example ले लीजिए. You are going for a war. आप वार जा रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ दुश्मन का ही बारे पता है कि इसका पास इतना आर्मी है, इसका पास ये बॉम्ब है, ये है, लेकिन आप खुद का स्ट्रेंथ नहीं जानता है. यू डोंट नो हाउ मच आर्मीज यू हैव, यू डोंट नो हाउ मच बॉम्ब यू हैव, हाउ मच कैपेबल यू आर. तो आप उसको ही आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ को आप पता नहीं होगा, सिर्फ दुश्मन का ही बारे आप पढ़ते रहेगा, दुश्मन का ही बारे जानेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफीट हिम. अब उसका पास है ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब पकड़ा है, हम तो नहीं डरेगा, ऐसे ही बोलेगा ना. बिकॉज यू माइट, हु नोज, यू माइट हैव 4 न्यूक्लियर्स, राइट. उसको आप आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है. यू माइट हैव दैट, बट आप अपना ही स्ट्रेंथ को नहीं जानता, अपना वीकनेस को नहीं जानता. तो somehow that is where you are failing. आप यूपीएससी का बारे ठीक से जान सकता है. फर्स्ट बिफोर नोइंग द सिलेबस, आई बिलीव आप खुद को नो करिए. फर्स्ट नो योरसेल्फ, फर्स्ट नो योर स्ट्रेंथ, एंड दिस इज हाउ माय जर्नी आल्सो बिगेन. आई डिसाइडेड in 2018 कि I will do civil services preparation. I was in college that time in Derist. तो उसमें ये हो गया था. तो I did not started with प्रिपरेशन की बुकिश नॉलेज का प्रिपरेशन नहीं किया. आई स्टार्टेड हाउ व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन दिस सिविल सर्विसेज. तो मैंने जाना कि यू हैव टू नीड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, यू नीड टू हैव perseverance, emotional intelligence. These are the things that is required since you are going to be a leader one day. So people need to look up to you. So ये सब चीज जो हमको लगा कि ओके, तब तो ये सब चीज करने के लिए क्या चाहिए, what is required. तो I reflected in myself कि
what are the issues that I have. So I was also like any other person in youngstar in the Arunachal. We all suffered through drugs, not drugs, sorry, alcoholism or cigarettes. I was addicted to smoking till 2018. Smoking, maybe I was addicted to smoking. I used to smoke every day, and alcoholism भी थोड़ा पीते थे time to time, and yeah, like that. And I was very active in social media, YouTube, Facebook, Instagram, and game भी Clash of Clan, ये सब में भी काफी खेले हैं. So I reflected कि these are the some weaknesses. Then what is my strength? Then I pointed out कि I have a strength. I was very good in studies throughout my school. Since my class 4 and till my graduation, I maintained very consistent. I was the first rank in the entire class till my graduation. So that was one of my strength कि जितना भी बदमाशी करो, जितना भी I maintain commitment. तो ये सब चीज को I find that yes, I have some strength कि हम committed रह सकता है कोई भी चीज को चाहने से. So I promised myself कि आज से since 2018 I will not smoke. I will not take a drink, and I will not use social medias like Facebook, Instagram. तो वो सब सोचा, तो आई लेफ्ट एवरीथिंग टुगेदर इन वन गो. एक भी चीज जो तब से हम अभी तक by God grace, and I knew that I would be able to do till my result was out. I was able to control myself and I managed to be disciplined. तो यही चाहिए, कमिटमेंट आपको चाहिए, आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल चाहिए. ये तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आप सोचोगे हम बहुत पढ़ेंगे, दिन में 10-12 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन यू आर ए वेरी पार्टी आउट गोइंग पर्सन, हमेशा पार्टी जाता है, हमेशा गेम खेलता है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो in 2018 to 2020 I build up myself, my own personalities. क्या है, one more thing I was lacking is in speaking English. I was very weak. I would not able to utter a sentence without getting stuck in between. तो मुझे कॉलेज डेज में they used to, my friends used to tease me calling English maker. The reason is because my English was very broken, and I was always, my English was really poor. तो वही था कि इंग्लिश, आई वर्कड ऑन माय इंग्लिश सिंस देन. हमेशा हम बात करता था, एवरीवन पीपल थॉट कि चिवी पागल हो गया बोल के, क्योंकि आई वाज नॉट स्पीकिंग टू देम एनीवन इन हिंदी. जो भी बोलता है आई वुड पोलाइटली रिप्लाई देम इन इंग्लिश. सो दिस इज हाउ वन थिंग आई हैव लर्न कि अगर आपको मोटिवेटेड, आप खुद को पर्सनल डेवलपमेंट लाना जरूरी है. आपको, आप खुद को ग्रोथ, दिस इज ए फाउंडेशन. बिकॉज बिल्डिंग में भी हम लोग, व्हेन यू आर बिल्डिंग ए हाउस, यू नीड टू बिल्ड ए फाउंडेशन, ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहाँ से आएगा? फ्रॉम योर ओन पर्सनैलिटी. आप पर्सनैलिटी, आप जो आपका फ्लक्चुएट होते रहता है, इफ योर मेंटल इज नॉट स्टेबल, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आप जितना भी चाहेगा हम आई विल रीड, आई विल डू, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. सो यू नीड टू हैव a very strong base, and this strong base will come from your own personality, own development. And this is what civil services teaches us. वो शुरुआत जब से आप मेंटलिटी बना लेगा कि आई विल डू सिविल सर्विसेज, योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. आपका एग्जाम क्रैक करना इज वन ऑफ द लास्ट थिंग दैट वी डू. हम लोग प्रोसेस में जाता है, हम लोग दिन ब दिन we develop ourselves, not just हम लोग रट्टा लगा के ऐसा होके पास कर लेता. You have to be, because it's a very long journey, you have to develop your own personality in order to achieve. So don't just think ये एग्जाम होगा तो हम just like any exam I will just start reading. That is not case. You have to be you have to change yourself. You have to introspect. That is first thing, first mantra is there. Then after that you learn about the UPSC. What is its syllabus? What are its PYQs? Analyze those things. PYQs analyzing. Learn about UPSC. What UPSC demands. What are the questions they are asking? Because this is the, आपको यही गाइड करेगा. ये UPSC का जो सिलेबस है, आपका PYQ से, they will be the real guide. आपको अच्छे से ये करेगा, मतलब ये करेगा. And thirdly, what I observed from the recent result is that those who have cleared in 2024 UPSC prelims, 90% have made it in our list, and some of them are already in the UPSC. So target UPSC. Don't just key APSC, because the syllabus is same, right? Just think. Don't think कि हम सिर्फ स्टेट का सोचेगा. Think about UPSC. आप UPSC लेवल में सोचेगा
तो नातुम लोके सर ऑलवेज सेज दैट बड़ा सोचो तब आप थोड़ा नीचे आएगा, आप ऊपर सोचोगे तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं। लाइक इट हैपेंड विद अस आल्सो, मेनी ऑफ अस, हम लोग टारगेट यूपीएससी को ही ये करके हैं, तो उसी का एक लेके इफ यू टारगेट बिग सो एपीसीएस इज अचीवेबल। जो इस बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं 2024-25 में, आई हैव सीन 90% ऑफ देम हैव बीन इन द लिस्ट। सो टारगेट यूपीएससी, थिंक बिग, एंड आपको स्टेट में भी आपको जरूर मिलेगा। तो सिलेबस इज सेम, सो एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। तो थिंक बिग यूपीएससी के लिए। एंड थर्डली, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ कुछ डाउट्स आते हैं शुरुआती में, शुरुआती दौर में, जो कि हम लोग का होता है कि क्या करें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, क्या न्यूज़पेपर पढ़ें, ये सब हम लोग कभी आए थे कि क्या ऑप्शन चूज करें। फॉर एग्जांपल, आई आफ्टर गिविंग माय प्रीलिम्स, आफ्टर गिविंग माय 2020 मेंस, आई ट्राई टू चेंज माय ऑप्शन। सोचा कि ऑप्शन मेरा सही नहीं रहा होगा, हिस्ट्री को एवरीवन सेज कि हिस्ट्री इज नॉट स्कोरिंग, सो आई विल चेंज माय ऑप्शन। फिर सर को बात किए, फिर कंफ्यूज हो गए, आई टुक पीएसआई। फिर आफ्टर 1 मंथ आरटीआई रिजल्ट निकल गया मेरा, सो आई सो कि आई स्कोर्ड 110, सो फिर आई चेंज माय ऑप्शन। नो, दिस इज समथिंग इतना, आई आई रेड ओनली 3-4 months बिफोर द मीन्स, क्योंकि 2020 को ही मैंने ग्रेजुएट हुए थे, तो आई जस्ट रेड 3-4 months बिफोर द प्रीलिम्स। फिर भी in spite of that I secured 310 plus, so I thought I have some potential and aptitude with respect to history, so I changed my mind again. So having a constant mentor like Natum Doke sir, and also I'll try to help Natum Doke sir through this his platform. I will also provide the guidance. Mentor को बात कीजिए, कभी कभी confusion होता है, this itself अभी तक हम लोग कंफ्यूज होता है, अभी तक जर्नी में भी अब क्या करें, अब क्या करें, अभी कैसा प्रिपरेशन अब मिल गया है एपीएससी, तो शुड आई कंटिन्यू माय यूपीएससी प्रिपरेशन, कि किस तरह मैनेज किया जाए। तो वी ऑल आर लर्निंग, एवरी फेज वी ऑल आर लर्निंग, सो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। सो आपको डाउट्स भी होता है, तो जातुम जोके सर इज अवेलेबल एंड वी विल बी अवेलेबल। तो मेंटर, हैव अ मेंटर, this is one of the problem issues that I have faced. And secondly, one very interesting thing I would like to share. हम लोग सोचने लगता है कि लाइक वी आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, मेरा मेमोरी खो रहा है ऐसा। इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस, देन आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस। इन 2022 आई वेंट टू गंगाराम हॉस्पिटल इन दिल्ली, थिंकिंग कि मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है, आई एम हैविंग ए डिमेंशिया। तो हम हॉस्पिटल गया वहाँ पे कि हम जितना भी पढ़ता है आई एम नॉट एबल टू रिटेन, सो इतना पढ़ा था कैसा ये गया। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल। It is funny, obviously, when you are giving emojis, you will also experience this कि इतना पढ़ा था कैसा भूल रहा है। तो are you having some mental issues? Because ultimately your biggest asset is your mind, right? In this journey, अगर आप mentally आपको retain नहीं कर पाओगे तो, so this is our biggest fear. I literally went to hospital to check if I am having a dementia. तो ये प्रॉब्लम अगर आता है, आपको लगता है कि बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग, हमको ऐसा नहीं था, ऐसा एक्चुअली नहीं था कि आई वॉज हैविंग डिमेंशिया। द थिंग इज दैट कि हम बहुत भूल रहा था, एंड आई हैव नॉट डन एनफ रिविजन। द सिलेबस इज सो वास्ट एंड दिस जर्नी इज सो वास्ट कि आप रिटेन नहीं कर पाता। इफ यू हैव रेड वंस और ट्वाइस, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिटेन एवरीथिंग। एंड तब आपको डाउट होने लग जाता है कि हम जितना पढ़े थे कैसे भूल गया। सो डोंट गेट डिस्करेज। आई हैव आल्सो बीन टू, एटलीस्ट आई एम श्योर कि आप हॉस्पिटल जाने तक तो नहीं होंगे। तो आई गॉट सो upset about myself कि हम हॉस्पिटल जाके I had to get consoled by the doctor that everything is fine. And in the same year in 2022, after 2 months I cleared UPSC prelims. तो ऐसा भी होता है। ओके, सॉल्यूशन बता दो बोल के बोल रहा है। तो ये है सम कुछ कुछ इश्यूज है। ओके, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी। एंड थर्ड थिंग इज, आप ये जर्नी में आप लो फेज एंड हाई फेज आपको जरूर ये मिलेगा। कभी कभी आप ऐसा भी होगा कि आप बहुत कम नहीं पढ़ पा रहा है फॉर ए वीक्स और फॉर फ्यू डेज, यू वोंट बी एबल टू। आप स्ट्रेस मत लीजिए ऐसा समय में। आई एम नॉट हियर टू जस्ट गाइड ये क्या था वो आपका स्टडीज रिलेटेड को।
आपको एक्सपीरियंस को हम शेयर करेगा ताकि आप लोग भी स्ट्रेस नहीं होने के लिए। लो फेज आपको ये करेगा, यू विल हैव सर्टेन लो फेज इन लाइफ इन दिस जर्नी। तो आप अगर लो फेज होता है, नहीं पढ़ पाता, देन जस्ट थिंक कि थिंक पॉजिटिवली, एवरीवन गोस थ्रू दैट फेज, जस्ट परसिवियर टिल दैट टाइम एंड बिलीव कि आपका अच्छा टाइम भी आएगा। सो हैविंग said that, have faith in and in yourself, and certain times आप अगर low marks आएगा, there are certain incident कि आप टेस्ट देते हो and you will get very low marks, you get demotivated, हम जर्नी नहीं करेगा। I'll share my marks here कि किस तरह prelims के initial days में I used to get marks, I'll share, then don't get demotivated। In 2022 prelims UPSC के I got 50 marks out of 200 in prelims in the test, last test before the real exam, but I managed to get 100 plus in the real exam. So ऐसा कभी कभी आ जाता है कि in the test you might not get the good result, but don't get demotivated. Take test as a kind of motivation or kind of a way to check yourself. And also in this journey you will make up many mistakes। हम लोग आपको जितना भी बताओ, you will make mistakes, you have to learn through the mistakes। These are the things। Yes, optional, sir, is geography optional? Yes, I'll come to the questions, don't worry, this optional I will discuss, don't worry about it। And also about the this coachings, आप लोग हमको पता है आप लोग कोचिंग्स के बारे में पूछोगे कि कोचिंग्स क्या क्या होता है बोल के, कौन सा लेना चाहिए बोल के। तो मैंने तो कोचिंग्स आई इनिशियली बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फोमो इन 2020 I did not join any coaching that time। I attempt very raw without taking any coaching। I did not join in, I just joined test series। यातुम दो के सर के वहाँ मैंने प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी लगाए थे। सर ऐसे ऐसे भी सर के साथ ही अच्छे से गाइडेंस लेके थ्रू हिम आई गेव एंटायरली फ्रॉम दैट इन दैट ईयर। उसके साथ ही रेखे मैंने 2020 दिए थे। सो उसके साथ ही रेखे गेव एंड आई डिड नॉट took any coachings there। Then after failing the 2020 exam, so I thought of कि फोमो आ गया था कि ऐसा सब ले रहे हैं, मे बी कोचिंग नहीं लिया इसीलिए। तो आई वेंट टू दिल्ली एंड ज्वाइन विजन आईएएस दैट टाइम। विजन आईएएस ज्वाइन किए थे, बट आई फाउंड दैट कि यू आर when you are already 1 year पार कर चुके हैं, when you have done the basic things, they will be teaching the same things only, and आपका आना जाना में टाइम लग जाता है, फिर वो लोग के लेक्चर्स को आप नोट बनाओगे। बट आई हैव ऑलरेडी रेड द बेसिक बुक्स दैट इज रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स। सो मुझे जरूरी नहीं था फिर दो सोर्स को, हाउ कैन आई रीड वन नोट्स बनाऊंगा, उसका नोट्स पढ़ूंगा, या फिर आई विल रीड स्टैंडर्ड बुक्स। तो आई वाज वेरी गेटिंग कंफ्यूज। सो आफ्टर ए 1 month आई जस्ट लेफ्ट। किसी को मैंने नहीं बताया, पेरेंट्स को इफ आई टोल्ड देम अबाउट इट कि तो काफी दांत पड़ते, क्योंकि बिकॉज huge amount is spent here, more than 2 lakhs I spent in getting class, joining this institute। But 1 month के बाद ही only geography I took from them, and after that I left the coaching। क्योंकि मुझे सब कुछ ज्यादातर मुझे अच्छे से मुझे पता था ज्यादातर चीज जो, and I was just yes, I'll discuss about the Jamia coaching as well at the last। So I'll be sharing some history optional also, yes, I'll discuss, don't worry। So I'll share my screen now। I have put I have made some, I have prepared a PPT kind of। तो इसमें आपको सब क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो so Natum sir, can you confirm once if my screen is visible? Yes, it is visible। Okay। So this choosing optional, as people were asking about the optional, I have made notes about it। तो आपको कैसा ऑप्शनल चूज करना चाहिए बोलने से, फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट है कि नहीं वो सब्जेक्ट में, तो उसको आप देखना चाहिए। आपका बैकग्राउंड क्या रहता है आपका। अगर वी हैव सीन इन द रिसेंट एग्जाम आल्सो दैट द टॉपर्स हैव बीन चूजिंग देयर ओन बैकग्राउंड सब्जेक्ट।
आई हैव मेड नोट्स हियर। ये देखिए, आपका रैंक 1 हुआ लॉ से, सेकंड है केमिस्ट्री से, थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस से, फोर्थ है बॉटनी, फिफ्थ है इकोनॉमी। सो बैकग्राउंड होना इज ऑल्सो अ गुड गुड ऑप्शन। आपका बैकग्राउंड से होने से भी यू कैन गो फॉर इट, एंड ऑल्सो सी कि ओवरलैप होता है कि नहीं जीएस को, इट विल बी हेल्पफुल। And fourth is aptitude. Some people have good aptitude with regards to writing. अगर आपका इंग्लिश बोर्ड अच्छा है तो आपको PSIR ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आपको ज़रा टेक्निकल लिखने का अच्छा लगता है तो गो फॉर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट। तो आपका एप्टीट्यूड को भी ध्यान ध्यान रखना चाहिए मेरा हिसाब से। And also, if you are working, you should consider your time also. For example, history is a very vast syllabus. सो अगर आपको लेंथ इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, सो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो कि आपका पास कितना टाइम है, आइदर यू आर वर्किंग और नो, हाउ मच टाइम डू यू हैव। सो एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड स्कोरिंग ट्रेंड्स, you need to identify all these things in order to choose your options. So I have noted down some 38 people I've able to collect out of 50 top 52 rankers. So I have collected with the help of me. I would like to thank all my fellow mates who have provided me these data. तो रैंक 1 एज यू कैन सी कि ऐसा ऐसा आया है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट। तो रैंक वाइज के हिसाब से आई हैव पुट डाउन ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हियर, एंड these are the options. You may take a screenshot. अगर बाद में आराम से देख लीजिए, ये रैंक है, एंड these are the optional subjects. So these are the ranks. uh, तो आई हैव कोलेक्टेड 38 सैंपल, जिस 38 आदमी के लिए हैं। तो उसमें क्या क्या मुझे डेटा दिखने मिले हैं इस बार के ये में, एंट्रो एंड ज्योग्राफी वाज वेरी हाई। ऑब्वियसली ज्योग्राफी में तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं, तो सक्सेस इज आल्सो काइंड ऑफ गुड। ये है फर्स्टली कि आपका बैकग्राउंड होना, और दिस टाइम इट वाज बिट अनकन्वेंशनल दिस टाइम। देखिए आपका देखो दो टॉप 5 रैंकर्स, दे हैव चूजन देयर ओन सब्जेक्ट। सो ऐसा मत सोचिए कि आपको एक कन्वेंशनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियो ऐसा करने से ही आपको रैंक आएगा। इफ यू हैव अ कमांड ओवर योर सब्जेक्ट, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स और एनी सब्जेक्ट, अगर आप अच्छे से करते हैं एंड यू हैव अ बैकग्राउंड, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको आपके सब्जेक्ट से ही लेना चाहिए। We have seen that also, and you can see I have put down the data. Intro 7 है, geography 12 है, history के भी तीन आए out of top 52 candidates I have collected. तो history agriculture is also, तो ये है जो information है, you can take a screenshot and then decide what options you want to have in the next exam. So ये कुछ data मुझे जो मिला है आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड एज आई सेड कि आपका ऑप्शनल अगर आपका बैकग्राउंड से होगा तो भी APCS दिस टाइम आई थिंक वो लोग भी चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड और डाइवर्स बैकग्राउंड होना चाहिए सिविल सर्विसेज में। सो ऑब्वियसली दिस इज मच नीडेड। ये है, अच्छे से आपको ये भी करेंगे। आप अगर आप ऐसा ऑप्शनल चुनते हैं जिसका आपका बैकग्राउंड है, तो आई थिंक it will have a positive this also रिवार्ड भी दे सकते हैं आपको। तो डोंट थिंक कि आपको जस्ट people are taking going for history and people are going for geography, I'll go for geography। ज्योग्राफी के भी काफी कैंडिडेट थे, इसके बाद से भी आउट ऑफ 12 ही हुए हैं आउट ऑफ 38। तो एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल वेटेज इसके हिसाब से, बट बेस्ड ऑन दिस डेटाज यू कैन सेलेक्ट अपना ऑप्शनल को। So, strategy about my book list. I have made all the I have put the pictures। कभी कभी क्या होते थे कि नातुन मुके सर भी बोलते थे कि एक स्पेक्ट्रा वो ले लो, स्पेक्ट्रम बुक ले लो बोलता था। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेक्ट्रम बुक कौन सा होता है, क्या होता है, सर्च करते हैं तो डिफरेंट कलर आता है। तो ऐसा सभी होता है, और फिर पूछने के लिए फिर किससे पूछे ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने के लिए आई जस्ट स्क्रीनशॉट फ्रॉम द अमेजन डायरेक्टली और फ्रॉम द इंटरनेट, कि आप लोग को भी कंफ्यूज मत हो। दिस आर द बुक्स डायरेक्टली आई हैव टेकन फ्रॉम द अमेजन, यू कैन कलेक्ट इट। अगर आपको बुक लिस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, आई हैव सीन यातुम दोके सर्स नोट्स आल्सो वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, और बहुत अच्छा है, क्रिस्प है। स्पेशली मेंस का हमने देखा था तो बहुत अच्छे लगा उसका नोट्स को भी। तो डू फॉलो, अगर आप पढ़ चुके हो उसको तो उसी को स्टिक कीजिए। डोंट look around for different sources।
just these are the books because I left my coaching after 1 month, so I followed all the standard books apart from geography. ज्योग्राफी को मैंने आई डिड द क्लास नोट्स 1 मंथ जब किए थे, तो ऑप्शनल के ये के ज्योग्राफी के जो किए थे उसमें नोट्स ही किए। तो आई ऑल्सो, अगर नोट्स आपको मिल जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग से, सो आई नो ज़्यादातर हाईली रिफाइंड होते हैं, तो फॉलो दैट वन। सो दिस बुक्स दैट आई, अगर आपको बहुत नया है एंड इफ यू वांट टू फॉलो, एज आई सेड कि यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, यू हैव टू नो कि आपका कैसा एप्टीट्यूड रहता है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे शॉर्ट शॉर्ट और लिख देते हैं, हाईलाइटेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो काफी अच्छे लगते हैं। पैराग्राफ में लंबा लंबा लिखने से आई डोंट वांट टू सर्च, आई डोंट वांट टू फाइंड द इम्पोर्टेंट लाइंस। सो ऐसा में बोर हो जाते हैं। तो यू हैव टू नो कि किस तरह आपको पढ़ने से अच्छा लगता है, किस तरह यू माइट हैव different aptitude or different interest in different kind of books. So every toppers, there is no one particular ये होता है सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं होता। आपको ही जानना पड़ेगा, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि आपको जानना पड़ेगा क्या है, आपका क्या एप्टीट्यूड है, आपका क्या इंटरेस्ट है। आई व्हाट आई रिफर्ड, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हियर, जस्ट गो थ्रू इट, एंड आपका इंटरेस्ट रहता है तो यू कैन चूज द सब्जेक्ट। इकोनॉमी में ज्यादातर लोग बहुत आर एस कुछ कुछ लेते हैं, और डिफरेंट बुक्स आई हैव आल्सो बीन थ्रू डिफरेंट बुक्स। मुरनाल साल लोग का काफी बाल्की है। तो आई हैव बीन थ्रू ऑलमोस्ट, इकोनॉमी में आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, आई हैव बीन थ्रू ऑलमोस्ट 5 to 6, रमेश सिंह, वो सबको मैंने देखे हैं। बट आई फाइंड नितिन सिंघानिया का बुक काफी अच्छे हैं, हाईलाइटेड फॉर्म्स में है। तो इसको मैंने ले लिया एंड आई हैव फॉलोड इट diligently. एंड सेकेंडली पॉलिटिकल, तो एवरीवन नोज लक्ष्मीकांत, डू इट डिलीजेंटली फॉर मेंस आल्सो एंड प्रीलिम्स आल्सो। इसको अच्छे से लक्ष्मीकांत को कर लीजिए। फॉर मॉडर्न इंडिया आपको स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम बुक। एंड इवन फॉर ऑप्शनल आल्सो आई somehow referred used this some of the things I have used, some of my knowledge I used from it। तो स्पेक्ट्रम को ही मैंने यूज किए हैं। फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ओनली आईएस उड़ान ये बोल के आपको गूगल में सर्च कीजिए, सो यू विल गेट दिस पीडीएफ। यू कैन डाउनलोड इट और परचेज इट फ्रॉम दिल्ली, ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो दिस वाज माय एंशिएंट एंड मेडिवल, क्योंकि काफी कम्पैक्ट और रिफाइन होते हैं ये लोग के नोट्स, ओनली आईएएस के। साइंस एंड टेक भी ओनली आईएएस से ही मैंने पढ़े हैं, तो उड़ान ये है, ये यही नोट्स मैंने पढ़े हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया अगेन, आर्ट एंड कल्चर, इसको सेलेक्टिवली, नॉट एवरी इसको चैप्टर्स को पढ़ना है, इसमें सेलेक्टिवली आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, साइंटिफिक कुछ कुछ ये है। आपको रिलीजन लोग के बारे नहीं पढ़ना है आपको, you have to selectively read this, but this is very helpful books for art and culture. Secondly, PYQs देखना बहुत important है। For PYQs I found next IS का for UPSC, this is very relevant और बहुत काम का है। I refer this, आपको PYQs साइड बाय साइड, अगर आप along with classes, along with आपका जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एंड उसको देखेंगे तो PYQ सॉल्व करेंगे, तो it will be very helpful। एंड फॉर स्टेट स्पेसिफिक आई हैव फाउंड कि घटना चक्र इस स्टेट पीसीएस के लिए काफी रेलेवेंट है, क्योंकि यूपीएस एपीएससी में इस बार भी देखे हैं कि इतना स्टैंडर्ड जो यूपीएससी के लेवल का अभी तक नहीं है, इवन इन द अदर स्टेट पीसीएस आल्सो, तो डिमांड इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो आई ऑलमोस्ट अवॉइडेड दिस यूपीएससी का। उसमें मैंने आफ्टर माय मेंस, when I started preparing for the civil state PCS, तो I completely relied on this book। स्टेट एग्जाम के लिए मैंने लिख दिया है। तो घटना चक्र के हर एग्जाम के, यूपी बिहार, हर एग्जाम झारखंड के हो गया, तो हर एग्जाम के ये है। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सब हिस्ट्री फ्रॉम डिफरेंट, ये क्वेश्चंस यू विल गेट PYQs question from different states। So this was really helpful। Some of the questions I felt like directly it was coming from those questions। बहुत सा questions थे जो कि बहुत direct थे। तो these are the few PYQs। Obviously कितना नया questions भी बनाओगे, तो it was very helpful I would say। And for current affairs, uh, for UPSC I was relying on समाधान। समाधान मैंने यूज किए हैं इसको, इट इज वेरी हाईली कंपाइल्ड। फर्स्ट में हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग 365 या फिर मंथली करंट अफेयर्स बहुत पढ़ते थे। इवन इन माय अर्ली डेज इन 2020
I used to read current affairs a lot, मतलब monthly compilations को. But in my after मुझे पता लगा कि इतना भी current affairs को stress नहीं करना चाहिए. जो आपका ये है, आपका जो है बेसिक सब्जेक्ट्स है, जो कि ये है जो आई हैव टोल्ड हियर, तो ये लोग को ही अच्छे से करें, तो आपका कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स में आपका हो जाएगा. और करंट अफेयर्स को लास्ट में आप ये समाधान आ जाने के बाद करो. न्यूज़पेपर को रोज पढ़ो, गेट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड फॉर प्रीलिम्स आप करंट अफेयर्स को ही लास्ट में आप कर सकते हैं. ये समाधान बुक बाय सुन्या यस, इट्स हार्डली 200-300 पेजेस, तो इसको आप पढ़ो, काफी क्रिस्प होता है. For UPSC. For state, I find that this Eduteria is very relevant. Eduteria को मैंने यूज किए थे. उसके स्टेट के लिए मैंने फिर अगेन सुनिया इसको रेफर नहीं किया, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा सा अलग होता है, तो थोड़ा स्ट्रेटजी आपको बदलना पड़ता है. तो आई रेफर्ड एडुटेरिया फॉर करंट अफेयर्स फॉर स्टेट. तो current affairs is very dynamic, so that's why don't dive too much deep into it, because आपका cost benefit इतना नहीं होता है जितना आपका स्टेटिक सब्जेक्ट से होता है. एंड करंट अफेयर्स विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. आज इसको पढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर इफ यू अगेन ट्राई, सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग, सो द बेनिफिट इज नॉट देयर. बट इफ यू रीड जो स्टेटिक सब्जेक्ट है, वंस यू रीड, यू हैव टू रीड कम. अगर इस बार भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी आपको यही पढ़ना है. तो रीड द स्टेटिक सब्जेक्ट मोर at that time. And for CSAT, I have not read anything. I have just read this by Mudit Jain sir, Decode CSAT. This is previous year, काफी explain अच्छे से किए हैं aptitude वगैरह को भी, how to reach to the answers, किस तरह हम लोग decode किए हैं या किस तरह टेक्निक लगा सकते हैं. So I practice only the PYQs questions from 2014 to 2020, जितना तक अभी तक बना है. तो मैंने फर्स्ट को सॉल्व कर किए. फिर आफ्टर दैट आई ऑल्सो प्रिंट आउट करते थे 2024 के 23 के PYQs जो क्वेश्चंस हैं. देन आई ट्राई टू इन एग्जाम लाइक कंडीशन आई वुड सॉल्व विद अलोंग विद द OMR सीट. तो एग्जाम लाइक कंडीशन में मैं सॉल्व करता था. फिर आई वुड चेक माई सेल्फ कि कितना आ रहा है आपका ऑन द ईयर बेसिस. I would note down my score also, so that you can update yourself कि कितना आपका स्कोर जो आ रहा है ये का on daily का ये का, और ये का आपका ये में. तो आप ये कर सकते हैं, सॉल्व द PYQs प्रॉपर्ली. एंड लास्ट में आप कुछ इफ यू वांट टू गिव लाइक मॉक्स, फाइनल मॉक्स, एट दैट टाइम 2-3 मॉक्स लगा लीजिए. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील इज आपको CSAT में कि आपको अच्छे से करना होगा CSAT. डोंट टेक लाइटली CSAT को. In 2022, I am an engineer graduate, so I thought कि it's easy and I would be able to clear. So I got only 70 that time, and I was very afraid that time. Natum Doke sir ko bhi I still remember. I called him and told that I am in a border. 74 to 67 आ रहा है मेरा स्कोर के कोचिंग के हिसाब से. So that I had that, and since then I've been preparing very well in CSAT, and I've been managing to score more than 100 plus in the CSAT. वही स्ट्रेटेजी थे कि I prepared very nicely द PYQs को मैं बहुत बहुत बार मैंने सॉल्व किए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर ये 2-3 लगाते थे, 3-4 तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तो ये टेस्ट सीरीज वहां से लगाते थे. एंड आई हैव शेयर दिस ऑल्सो कि ये ऐप है UPSC पेपर्स, ऑल UPSC पेपर्स. आप सर्च कीजिए, ये मिल जाएगा आपको. ईयर वाइज आपको मेंस के भी प्रीलिम्स के भी साथ में मिल जाता है. तो यू डोंट हैव टू चेक, गो अगेन एंड अगेन आपका UPSC के साइट में जाके PYQs को. You don't have to find it because it's a time taking. There are so many exams in that there. तो उसको आप टाइम लग जाएंगे and it's difficult. But if you download this app, it will PYQs will be very much easily accessible to you. तो प्रिंट आउट वहां से कर लीजिए and solve PYQs. Even GS questions को अच्छे से मैंने सॉल्व किया है year wise. And I've tried to identify कि क्या क्या UPSC. You just don't accumulate the informations. आपको knowledge accumulation नहीं करना है. You have to build means understanding of how UPSC frame questions. This is what required. You see UPSC को, और या फिर कोई भी ज्यादातर UPSC को, they do not want a person who just mugged up and this. They want us to analyze the data कि किस तरह हम सेट करेंगे क्वेश्चंस और हाउ डू यू फाइंड इट, हम लोग का जो है. तो आपका एनालिटिकल माइंड जो है
डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो आई फील कि आप एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप कीजिए। यूपीएससी का आंसर क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करते समय देखिए कि हाउ दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। आई विल से राइट, आई हैव रिटन डाउन, डोंट वरी कहाँ पे मैंने ये किए थे, और आई डिस्कस। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन डाउन कि किस तरह दिस इज नॉट 100% ट्रू, बट व्हाट आई एनालाइज माई सेल्फ कि अगर हम रिस्क लेगा, बिकॉज आई हैव टू अटेम्प्ट 90, आई यूज टू टारगेट मोर देन 90 क्वेश्चंस इन यूपीएससी। तो मुझे टारगेट रहता था, तो आई वुड टेक ए रिस्क कि किस तरह यूपीएससी जो ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। आप लोग भी थोड़ा गौर कीजिए। मिनिस्ट्री, दिस इज इनिशिएटिव ऑफ दिस मिनिस्ट्री, दिस इज इनिशिएटिव ऑफ दिस मिनिस्ट्री बोलने से, क्योंकि दैट्स अ वेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। मिस्टेक्स जनरल आंसर को नहीं, यूजुअली दे वोंट मेक रॉन्ग ऑप्शंस नहीं बोल सकते। मीन्स एक जनरल स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग बताना, इट्स डिफिकल्ट, बट इफ इट इज फैक्ट्स, तो फैक्ट्स तो रॉन्ग बताना इट्स वेरी इजी। सो थोड़ा अगर फैक्ट्स होगा, फॉर एग्जांपल नंबर्स होगा, साइंस एंड टेक में 5500 1000 ऐसा, उनसे आई वुड बी लिटिल बिट, नॉट ऑल द टाइम, थोड़ा डाउटफुल होते हैं, थोड़ा मतलब उसको गौर करते हैं कि हाउ मच दे आर प्रोवाइडिंग द फैक्ट्स। एंड मेनी टाइम्स, मोर देन 70 टाइम्स, एटलीस्ट 70% ऐसा कभी कभी, ज्यादातर में तो गलत स्टेटमेंट होता है, इन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू साइंस एंड टेक। तो आई हैव एनालाइज these things, कि initiative of this is developed by these things. I have written down this. If there is a statement, extreme statement, that completely this is done by this is only done by this, all of them are this entirely. These statements are very, it's very extreme. So I will be very much, conscious, और बहुत इसको गौर करते हैं कि ये हो सकते हैं क्या, कि यूजुअली ऐसा ही वर्ड्स बना के वो मिस्टेक्स करते हैं। अब भी दिस इज हाउ यू शुड बी एनालिटिकल विद द यूपीएससी, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हार्डली एक या फिर दो या फिर रिपीट ही नहीं करते हैं, बट थिंग इज दैट दे आर योर गाइड, हाउ यू एनालाइज द ट्रेंड। कुछ कुछ है साइंस ऐसा सा, this is my understanding कि possibility, if there is a saying that this is a new technology, this is drone can be used, possibly can be used to uh, do surveillance, can be used by police personality, ऐसा सा कुछ कुछ स्टेटमेंट होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। तो पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर विद रेस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक। तो आपको ऑलमोस्ट आपको मानना चाहिए कि हाँ, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, इवन इवन दो यू आर नॉट अवेयर कि ये क्या क्या यूज आते हैं। तो लाइक दैट यू हैव टू बिल्ड ए स्ट्रेटेजी। आपको क्या क्या यूपीएससी मिस्टेक्स करते हैं, राइट इट डाउन। नॉट द सेम पॉइंट्स, आई वॉन्ट से विद कन्विक्शन कि यही की, बट दिस इज हाउ आई अप्रोच। हम देखते हैं कि किस तरह मिस्टेक्स करते हैं, आप वही अप्लाई कीजिए फॉर स्टेट पीसीएस ऑल्सो। हालांकि स्टेट में थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है, तो it's kind of little bit difficult, and I'll share my mark sheet. They always make sure कि note down कीजिए आपका marks को, ताकि आप you can take track your performance. This is somehow it helped me to boost, it helped me to push myself. हमेशा ट्रैक करना आप काफी मोटिवेट करते हैं, because you don't have to be better than anyone else, you have to be better than yourself. तो आप कम्पिटिटिव दूसरा से नहीं, आप हमेशा सोचिए कि आई वांट टू बी बेटर देन लास्ट यस्टरडे। सो कीप पुशिंग, कीप ट्राई टू बी बेटर पर्सन, एंड आप परफॉर्मेंस भी बेहतर करने की कोशिश कीजिए। कंपटीशन आप खुद से रखिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 2020 में आई वाज लाइक जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन, हमने प्रीलिम्स के विजन का ही तब से आई थिंक कि थोड़ा ये करना, टेस्ट सीरीज लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने शुरुआत से ही बहुत अर्ली से ही कर दिए थे, आफ्टर 1-2 मंथ्स के बाद ही प्रीलिम्स लगाना शुरू कर दिए थे। तो यू कैन सी आई वाज वेरी डिवास्टेटेड व्हेन आई गॉट 5 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो आई हैड टू सर्च इन द इंटरनेट कि इज इट ओके टू गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 in vision as टेस्ट सीरीज, और एम आई नॉट very incapable to become a civil servant बोल के, क्योंकि I was good in studies and I've been uh, good in this. I've been a gold medalist in my nearest in my department. तो क्या शायद मेरे पे एप्टीट्यूड ही नहीं होता होगा, ऐसा लगने लग गया था when I got 5 marks out of 200, and my ranking was also almost on the bottom line. So that time I had to search, but I found that there was one answer कि
it's okay, I got -8. So that was something that suit me कि अच्छा माइनस भी आ रहे हैं लोगों को तो कोई बात नहीं है, आई एम ऑल्सो स्टिल केपेबल बोल के तो आई कंटिन्यूड माई सेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्रूव वर्क ऑन माई सेल्फ. बट एट दैट टाइम 2-3 महीना में तो क्या भी कर सकेगा, आई वॉज वेरी न्यू. 2-3 months के बाद ही शुरुआत कर दिए थे. सो आई इम्प्रूव somehow improved in the ninth after a 1 month I was improving. So 2023 I always make sure कि I write down the scores in my diary. So scores जो है pre 2023 के I wrote it down 123, 132, 134 ऐसे आ रहे थे after 1 year or 2 year. So if you are getting a score, my intention is not to आपको ये करना चाहता है कि don't lose your hope after seeing a negative score in your test series. Just keep a hope कि आपको एक दिन आएगा जब after a years of preparations when you deserve and when you are capable enough, when you put enough hard work, तो आपका भी scores जो अच्छा आ जाएंगे. I also got 5.4. That is normal. Everyone starts with this only. So this is all about the prelims. में इंटीग्रेटेड स्टडीज तो करनी चाहिए बट मेंस में थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है. मेंस की स्ट्रेटजी आई विल शेयर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल for GS 1, 2 and 3 I have used diligently, very diligently. सुनिया के मेंस इसके ये 1, 2, 3, 4 इसका नोट्स को मैंने रेफर किए हैं. तो आप इसका सुनिया का वेबसाइट में जा सकते हैं एंड यू विल गेट दिस मटेरियल. दिस मटेरियल्स आर वेरी गुड. टॉपिक वाइज में इसका नोट्स अच्छे से आते हैं. GS 1 के सब नोट्स एक साथ में मिल जाते हैं, GS 2 के भी एक साथ में मिल जाते हैं एंड GS 3 के भी एक साथ में मिल जाते हैं. एंड नाउ सिंस इन फ्यू कपल ऑफ इयर्स चैट जीपीटी भी आ गए हैं तो मेक श्योर कि आपका नोट्स अपडेटेड रहना चाहिए. वन मिस्टेक आई वाज मेकिंग ओवर द इयर्स इज आई वाज रिलाइंग ओनली इन वन बुक. एक बुक में रहता है और उसी में हाईलाइट करके उसी को पढ़ रहा है. बट थिंग इज दैट अदर्स आर आल्सो रीडिंग दिस बुक्स एंड दे आर एनहेंसिंग देयर मटेरियल्स. वो अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं एंड दिस बुक्स आर बिट बल्की. यू हैव टू मेक नोट्स. नोट मेकिंग फॉर मेंस इज रियली रियली कंपलसरी. दिस I have also started making notes last year. Last year का मेन से ही मैंने बनाना शुरू किया in my third UPSC mains. सोच के देखिए. तो this was one of my biggest mistakes I was committing. कि I was just reading from the books and thought it is enough. आपको because technology बढ़ गया है and you have to update and constantly you have to update your notes. आपको अच्छे answers लिखना पड़ेगा. तो chat GPT is really relevant. This is how the books looks. GS2 this is how Sunya is. But इससे भी आपको notes बनाना पड़ेगा. You have to make a proper notes out of these books. I have made notes. It is bulky, it will take time, but notes बनाना इससे बहुत important है. Along with it, ये notes के बाद जब भी आप आंसर बना रहे हैं make sure कि refer to ChatGPT. Try to enhance your answer because so many people will be reading this mains booklets. So आप do make sure कि use ChatGPT and enhance your answers. And apart from that, ethics is really important. Ethics को इस बार मेरे सबसे अच्छे ethics ही गए हैं मेरे ख्याल से in my PCS exam. And I have used this Prahar ethics by ONDIS, but I have made notes this time. सिर्फ इससे नहीं लिए, I have referred to toppers notes also. वो लोग के कुछ कोड्स होते हैं एंड कुछ ये होते हैं डेटास जो हाउ दे राइट इट. तो उसके हिसाब से मैंने नोट्स एनहेंस किया है. डू रिफर 2-3 नोट्स फॉर एथिक्स. एक बार नोट्स बन जाएंगे तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. नोट्स मेकिंग इज बिट डिफिकल्ट, बिट टाइम टेकिंग, बट सिंस अभी तक एपीसीएस इज नॉट आउट यू हैव टाइम टू डू इट. एंड आप मत सोचिए कि अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी डिक्लेरेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो यू विल बी हो जाएगा, आराम से बैठेंगे. टेक दिस टाइम, व्हेन यू आर, आपका जब ये होता है तभी मेरा ख्याल से अच्छा से ये करना चाहिए. Apart from that, PYQs, I have PYQs very important. Even this year, I have given UPSC mains, and I found many questions were repeating. In fact, the two questions on which I have written essay on, so they were repeated from the last few years PYQs. Exact theme नहीं है, exact wording and exact sentences नहीं है, but the idea is same. So I find the essay this time it was my best in my
4 मेंस ऐसे तो काफी इस बार के आई फाउंड इट वेरी गुड। ऐसे तो अच्छे गए, दूसरा तो आई कांट से, बट डू रेफर पीवाईक्यूज। इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में बहुत सा एथिक्स में भी आए, जीएस2 में भी आए। दिस वाज क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज को देखिए, लाइक लास्ट लास्ट ईयर आई रिमेम्बर क्लाउड बर्स्ट के आए, बात के क्लाउड बर्स्ट के बारे आए थे। इस बार एनएससीएन के आए आए हैं, सॉरी नोटिस इंसर्जेंसीज के आए थे, एंड अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये सब पीवाईक्यूज क्वेश्चंस ही हैं। तो डू रीड PYQ questions nicely for GS। आप हो सकेगा तो आप आंसर्स को लिखिए, इसका हर क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। इवन इफ यू डोंट नो अबाउट इट, रीड इट फर्स्ट, रीड इट दिस फ्रॉम दिस बुक और मेक ए नोट्स एंड देन राइट इट टेस्ट एंड सबमिट इट टू योर मेंटर और एनीवेयर। तो ये कर सकते हैं। PYQs लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि रिपीटेटिव होता है बहुत सारा ये जो मेरा भी। आई फील दैट वन मिस्टेक आई वाज कमिटिंग इज नॉट राइटिंग PYQs। I was ignoring PYQs that for in my last three attempts in UPSC। तो इस बार मैंने PYQs थोड़ा किए थे। And about this and about note makings, I'll come now। My notes, initially what I did is I was following a book, एक कॉपी लेते थे, फिर I would write it down। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि I had to add something when then there is no space। तो ऐसा होगा। तो ऐसा होने से आपका नोट्स में ऐड नहीं कर पाने से you will have issues। uh, you will have the issue, you will have issues। तो आपको ऐड कर सकना पड़ेगा। So this time I have used this bag, this was really good, very helpful। So ऐसा यूज एक बैग लीजिए जिससे आपको नोट्स को रखा जाएगा, और एक प्लेन पेपर में A4 शीट साइज A4 साइज पेपर में आपको नोट्स बनाने से ठीक होगा ज्यादा ज्यादा। यू कैन डू वैल्यू एडिशंस, एंड अगर कुछ उसका रिलेटेड टॉपिक्स कुछ नया उभर के आने से यू कैन एडिट, एंड लाइकवाइज यू कैन यू नो मेंटेन अच्छा से कंपाइल्ड आपका सोर्स हो जाएगा। दिस नोट्स इज फॉर कीपिंग ऑल माय फर्स्ट हैंड नोट्स, जो मेरा फर्स्ट टाइम नोट्स होगा, विच इज लिटिल बिट एलाबोरेट, थोड़ा एलाबोरेट करके नोट्स बनते हैं। सो एंड दिस इज वन वेयर आई वुड कीप द लास्ट रिविजन, जो एग्जाम से पहले होगा, इससे एनहेंस करके फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर सेकेंड वाला में फर्स्ट से बनाएंगे। तो इसमें मैं ज्यादातर द थिंग्स दैट इज वेरी क्रूशियल, द फैक्ट्स, इसमें हम फैक्ट्स लोग को सेकेंड में रखते थे। द लास्ट रिविजन जिससे आपको, बिकॉज रिवाइजिंग night before exam to GS1 GS2, it's very difficult। You won't most of the time able to revise if your notes is bulky, and you will have to leave many of the topics। तो इसमें क्या होता है कि you might have read long time back, but you won't be able to present your datas and properly, arguments properly, committee का recommendations होंगे। तो you have to prepare a last minute notes so that का जो essence है आंसर का वो रहेगा, and you can revise before the exam also। I just wanted to show, क्योंकि इनिशियली हमें पता नहीं चलता, मुझे भी बताए थे ये चीज को, लेकिन आई डिड नॉट नो अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट इट। सो मैंने फोटो लेके शेयर कर दिए हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ये ऐसे नोट्स बनते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर का, यहाँ पे एनवायरनमेंट के, फिर करंट अफेयर्स के, मॉडर्न के, ऐसे ऐसे सेगमेंट बना के A4 साइज पेपर को मैंने रखे थे। तो दिस इज वेरी गुड कैरी बैग, ये जो बहुत अच्छा बैग है, तो आपको सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको ये करने का, हाउ यू शुड, दिस इज नॉट आपको ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ आई मेड नोट्स। कि फर्स्ट में आपको आपका जैसा कि म्यूजिक रिस्टोरेशन के बारे ये करना था, इसका पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट। मिलिट्री क्या क्या रिफॉर्म्स लिए थे, सोशियो कल्चर क्या क्या चेंजेस आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज हाउ द फर्स्ट नोट्स आर मेड, हम लोग बनाते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा स्पेस लीव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट इफ देर इज एनी डेटा यू कैन पुट, और लास्ट मिनट रिविजन के लिए आप इसको कुछ कर सकते हैं। लाइक इसमें कुछ वर्डिंग है, जापानीज वर्डिंग, विच इज वेरी एसेंस ऑफ दिस आंसर। मेजी के बारे जब भी आप ये करेंगे तो यू हैव टू कीप दिस कीवर्ड्स इन योर आंसर, इट नीड्स टू रिफ्लेक्ट। तो आपको ये टर्म्स इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, सो
आई विल ट्राई टू हाईलाइट इट। कुछ कुछ है उसको जो हम ट्रीटी ऑफ कानागावा ऐसा सा जो है, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम रख देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सोशल इकोनॉमिक्स क्या क्या है वो तो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। आप उसको आंसर में लिख सकते हैं, जनरल आंसर भी, बट कीवर्ड्स शुड बी देयर, फैक्ट्स शुड बी देयर। तो इसी के लिए यू नीड टू प्रिपेयर अगेन द सेकेंड नोट्स फॉर इट। and this is how my second notes was. सो यही मेजर रिस्टोरेशन के ही बारे हैं, पॉलिटिकल में क्या क्या हुआ, जस्ट प्लस प्लस प्लस। दिस इज डायरेक्टली कीवर्ड्स को मैंने लिख दिए हैं, वेरी शॉर्ट, इतना ही स्पेस में मैंने खत्म कर दिया। दिस इज टू टू पेज नोट्स एंड हियर आई एम कंप्लीटिंग इन जस्ट वन फोर्थ ऑफ द पेपर इन वन पेपर। तो ऐसे ही करके मैंने ये कर दिए। फिर नीचे में अमेरिकन रिवोल्यूशंस थे। तो दिस इज हाउ आवर नोट्स आर बीन वी शुड मेक। I have made notes for my last revision and my for first revision। जब आप आपको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो you will get to know about, मीन्स अच्छे से डिटेल में पढ़ना जरूरी है। बट आफ्टर मल्टीपल रिविजन ऑफ दिस फर्स्ट हैंड नोट्स आपका आइडिया लग जाता है उसका क्या क्या मेन चीज है आपको, यू विल गेट टू नो। बट यू विल हैव टू रिवाइज ओनली दोज थिंग्स दैट यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। So this was about notes making. I wanted to show कि किस तरह बनाया है हम। So I click all these pictures, आप लोग को भी थोड़ा those new experience को जानने के लिए। Then I'll go with regard to history optional। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए फर्स्ट है, ये है गूगल से मैंने सर्च किए हैं, selfstudyhistory.com। तो इट्स नॉट वेरी रेप्यूटेड, ये ऐसा ये नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है। दे हैव जस्ट ए साइट, एक सेल्फ स्टडी हिस्ट्री है एंड इसका पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पीवाईक्यूज अब मैंने किया है एंड इट इज बिट कॉस्टली ऑल्सो। इट समथिंग 8,000 समथिंग है, सिक्स यस इट्स अराउंड 5,000 6,000 समथिंग ऐसा, सॉरी 8,000 समथिंग है इसका नोट्स जो। तो पीवाईक्यूज ये इसको हिस्ट्री में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मैंने यूज किए हैं फॉर डूइंग पीवाईक्यूज। वहां से मैंने इसमें भी नोट्स बनाए हैं। इनिशियली आई डिडंट मेक नोट्स, तो काफी स्केटर्ड थे। कोई कोई पीवाईक्यूज के लिए अलग बुक्स एंड उसके लिए अलग बुक्स, तो इट वाज स्केटर्ड। सो आई कंपाइल्ड एवरीथिंग इन अंदर इन वन, ये आपका जो पहले दिखाए थे एक ही ये में बना दिए थे। तो फॉर दिस इज पीवाईक्यूज सेल्फ स्टडीज का, आप selfstudyhistory.com, ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ऑर्डर कीजिए। एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड नंबर, आप नंबर आई हैव कंटेक्टेड देम कि मैंने पूछा है कि आपका नंबर को शेयर करेंगे आप, अगर कोई स्टूडेंट चाहिए तो आप इसमें सेंड कर देना बोल के। तो आई ऑल्सो सेंड देम द मेल, contacted them through this because they have not like they are not very big institute, they are settled in Rajasthan I guess। तो वो लोग से ऑर्डर कर देने से दे डिलीवर इट। तो मैंने भी ऑर्डर किए थे। तो फिजिकल ये में आपका बुक्स में आपको ऑर्डर दे देंगे। सेकेंड इज दिस बलियान क्लास नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स है इसका। तो आई रेड इट, आई रेफर दिस बलियान नोट्स एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड वंस, नातुम दोकी सर हैज शेयर्ड दिस in his group also। तो उसका ग्रुप में भी शेयर किए थे। तो दिस वाज नोट्स एंड एज आई सेड कि अभी तो टेक्नोलॉजी का समय है, चैट जीपीटी को यूज कीजिए। चैट जीपीटी को यूज कीजिए, इसमें भी आपका आंसर में भी एनहेंस करते रहना चाहिए। आपका जो है अभी का पीवाईक्यूज को लेके एंड आपका नोट्स को लेके, दिस इज नोट्स एंड देन चैट जीपीटी यूज कीजिए, आपका आंसर्स को एनहेंस कीजिए कंटिन्यूसली। एंड एक ये होता है हिस्ट्री इसका पीवाईक्यूज को देखने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस है, ये दिस इज द वेरी गुड बुक। ये आपका जितना क्वेश्चंस है ये प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव आल्सो प्रेजेंटेड वन पेज कि महाजनपदा से कौन सा क्वेश्चंस आए हैं। तो दे हैव मेंशन ऑल द बुक्स, ऑल द क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव, यू कैन सी देम आल्सो। सो यू कैन प्रिपेयर बेस्ड ऑन दिस कि आपका टॉपिक वाइज नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज नोट्स ही मिलेंगे। आपका जो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री नोट्स है, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज ही आपका यूआईक्यूज है। तो इसके उससे लेके आप जो
टॉपिक वाइज महाजनपद से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे आप लिखिए। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुए हैं, तो उसके लिखिए। चैट जीपीटी यूज कीजिए, नोट्स यूज कीजिए, एंड उसके नोट्स यूज यूज कीजिए सेल्फ स्टडी से। तो इससे एक अच्छा आंसर बनाइए, क्योंकि ट्राई टू एनहेंस योर आंसर्स कंटिन्यूअसली। तो एंड यूज मोर स्कॉलर्स। अगर नहीं मिल रहा तो भी स्कॉलर्स को टॉपर्स के नोट्स से देख सकते हैं, या फिर आजकल तो चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं प्रोवाइड स्कॉलर्स व्यू ऑन दिस बोल के, तो वो बता देंगे। तो चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं स्कॉलर्स का एक। हो सकने से ज्यादा स्कॉलर्स मेंशन कीजिए आंसर्स में, आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एंड ट्राई टू राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। डोंट मिक्स अप कि दिस थिंग आई डिड इन माय फ्यू आई दिस वाज माय मिस्टेक्स इन माय फ्यू अटेम्प्ट्स, कि आई वाज राइटिंग लाइक ए जीएस आंसर, बहुत शॉर्ट शॉर्ट कर रहे थे इन यूपीएससी। बहुत शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे रहे थे डायरेक्ट एज ए टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक इन जीएस 1। काफी ये करके शॉर्ट नोट्स में आर्गुमेंट्स पॉइंट्स ज्यादा देने के चक्कर में। बट योर आंसर शुड बी लाइक ए हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट। तो क्योंकि चेकिंग तो प्रोफेसर लोग ही करते हैं आई गेस, तो आपको थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए फ्रॉम जीएस पेपर्स, दे अप्रिशिएट इट आई गेस। तो हो सकने से मिक्स कीजिए, कोई कोई को पॉइंट्स में लिखिए, कोई कोई को ये कीजिए, मिक्सअप कीजिए। दिस टाइम आई हैव डन सो। कोई कोई को पॉइंट्स में लिखा, कोई कोई को आई हैव ट्राइड टू इनकलकेट, क्या पैराग्राफ में भी लिखने की कोशिश किया है हिस्ट्री को। सो लाइक डू लाइक दैट। And one more thing about this, many questions people ask you how to remain consistent, because it's a long journey. Even for me, I took from 2020 to 2025. It's been a long journey. So how to consistently motivate myself, motivate yourself, how to be consistent. So I have been very consistent with my preparation. हमेशा पढ़ता है जहाँ भी गया है, everyone knows me. Everyone would say he is very hardworking. आई एम नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड पर्सन। हम जितना मेहनत करता है इतना ही रिजल्ट आता है। आई एम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, और जितना मेहनत करेगा इतना ही रिजल्ट आता है। किसी का टैलेंटेड नहीं है, अच्छे से ग्रूम भी नहीं है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है दूसरा से। सो आई हैव वर्क रेडी हार्ड एंड वेरी कंसिस्टेंटली। तो वन थिंग दैट एज ए लाइक पीपल व्हेन आस्क मी, तो दिस हैज बीन वन ऑफ माय mantra to remain committed and remain consistent. One is set small daily targets. Do not, track it. Track कीजिए अपना targets को. For example, ये 2021 में I would set a target of 14 hours, then I accomplish 14.5 hours. Then in the next day, I was targeting like 11 hours. So I was like based on this, based on requirement, I will set a daily target in the morning, and then I'll try to accomplish it. So अगर आपको एक हर दिन आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आप एक टारगेट बनाइए और उसको एकम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए। तो इफ यू एकम्प्लिश इट मीन्स यू आर गेटिंग सक्सेस, राइट? सो आपका एक डेली एक इट विल बी लाइक ए गेम फॉर यू। आप डेली एक सेट टारगेट सेट कर रहे हैं और उसको आप मिलते जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं मिल रहा तो यू विल बी काइंड ऑफ हैविंग ए गुड बैड वाइब। सो आप एक रिग्रेट फील करोगे, तो विच विल रिफ्लेक्ट इन द नेक्स्ट डे में आप ज्यादा टॉइल करोगे। तो दिस कंस्टेंटली आप मॉनिटर करते हो आप अपना ये को किस तरह, हाउ यू आर गोइंग एंड यू आर ट्रैकिंग योरसेल्फ। अदरवाइज क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं बोलने से, तो यू वोंट बी able to like know yourself कि कैसा जा रहा है बोल के। So in 2023 I was setting at this time I did not set targets, mind में होते थे, तो I would record every days में। Now again technology has come up, so we have this YPT. So I have created a group among my friends. Here many people, our respected ma'am Manku sister, who is now an IFS officer, she was also in our group, and many from the APCS batch, they were from in our batch. So हम लोग एक competitive environment set किए हैं through this group. This is called YPT. You all can download also. तो यहाँ पे क्या है कि study group होता है, तो in different batch you can use, and I'm also I just screenshot it to share you with you कि आजकल ये भी है, कोई कोई पता नहीं होते होंगे YPT क्या है बोल के। This is a earlier I was writing here, and now all my data, how many hours I'm studying, it is recorded digitally. तो हम कितना अभी I don't have to write these things in paper. It will be automatically set, and I will also consider how other people, my competitors, how they are studying. For example, देखो we don't provide our real name here, तो कोई कोई है, तो
कितने आवर्स लोग पढ़ रहे हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर, एंड यू कैन मेंटेन ए वेरी कंसिस्टेंट कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो ये ऐप भी अच्छे लगे मुझे टू ट्रैक योरसेल्फ। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड सेट ए रियलिस्टिक गोल, इट शुड नॉट बी लाइक अभी हम 15 व्हाई आई एम एबल टू स्टडी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम बोलने से, as I told in the beginning, I was very consistent from my very childhood. I was very hardworking since class 4 5 से ही मैंने बहुत पढ़ता था तब से ही। तो I had that kind of, I'm not very fast, fast ऐसा learner भी नहीं है। I am a slow learner, तो I had to toil more। तो और मेरे पास एंडोरेंस कैपेसिटी है, आई कैन सिट इन चेयर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। इतना ये नहीं है, लेकिन आई एम नॉट ए फास्ट लर्नर, आई वुड बी वेरी स्लो इन द क्लास। तो दैट दैट आई हैड। सो सेट रियलिस्टिक टारगेट इफ यू आर ए फास्ट लर्नर, एंड इफ यू आपको आदत नहीं है इतना लंबा पढ़ने का, सो सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। there are people who have studied 6 hours all the time, and they would clear because they are first learner, and they use their time very judiciously। तो वो लोग जानते हैं, and they are made for, that's why I said in the beginning कि आप you have to know yourself, you have to आपका जैसा क्या है आपका, you are fast learner or slow learner। तो जैसे कि मेरे पास endurance है, तो I would okay, I'm okay with studying for long hours with history optional। तो वो सब है। based on this, based on your own analysis of yourself, set your daily target। don't make it कि चीवी ने 14 hours पढ़े हैं तो I will also read। set a realistic target। people who have made it rate it 6 hours 8 hours, they have cleared UPSC also, whereas I'm not able to clear so far। तो ये नहीं होता कि hours, number of hours, लेकिन you have to know yourself। if I start reading 6 hours, तो तब मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। you have to know yourself, that's why you have to know yourself and set a realistic target, and there should be a clarity of purpose why you are doing it। it might be anything, आपका कुछ भी मोटिव हो, you don't have to be only one thing। आपका क्लियरिटी पर्पस होना चाहिए, आपका सर्विस हो, फैमिली के लिए हो, किसी के लिए, अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए हो। कोई ये नहीं है इसमें, खराबी नहीं है अगर आप खुद के लिए भी सोचना। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप खुद के लिए, आप इफ यू कैनॉट हेल्प योर सेल्फ, if you do not have enough resource for yourself, how are you going to help others? सो खुद के लिए सोचना इट्स नॉट ये, लेकिन रॉन्ग पाथ यूज नहीं करना चाहिए हम लोग को। हम लोग एक अच्छा लाइफ जीना है, अच्छे से काम करना है, इंटेंशन सच रखना, इट शुड बी गुड। आप ये नहीं हो कि हम सिविल सर्वेंट बन के हम आई डू करप्शंस, डोंट थिंक दैट वे। आप स्टेबल लाइफ, ये एक लाइफ रहना, आप स्टेबिलिटी के लिए एक सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल लाइफ सोचना इज नॉट बैड एट ऑल। आप पहले वो सोचोगे, फिर यू विल एबल टू सर्व अदर्स, राइट? इफ यू हैव दैट सही क्लियरिटी होगा, तो आपको आई डोंट थिंक कि आपको इतना प्रॉब्लम्स आएगा, आपको डीमोटिवेशन होगा। यू विल बी कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड बाय those things। and also give test, if you are not able to push in your low phase, you might be able to there might be a time that you will not be able to push yourself, then at that time give test। टेस्ट देने से आपका रिजल्ट खराब होगा, तो यू विल बी मोटिवेटेड टू डू improve yourself। so test giving, it helps to push yourself। so lastly about Jamia, in Jamia, it's a national institute which was set in 1916। as you all know कि उसको 1916 नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय से ये हुआ था। तो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, and they run RCA, a residential coaching academy, through which minorities जो सिख है, मुस्लिम्स है, and women भी होता है, फिर SC हो गया, ST हो गया, OBC I'm not sure, लेकिन ST हो गया और वुमेन हो गया, सबको they try to provide like free accommodations, a very subsidized rate, free accommodation मिलेगा आपको, लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा, दैट ऑल्सो अच्छे से वो होके ऐसी होके अच्छे से आपको लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी मिलेंगे, आपको कोचिंग क्लासेस भी दिए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें ऑलरेडी ये होता है, तो कोचिंग क्लासेस तो इतना नहीं लेते हैं, बट क्लासेस यू कैन डू। एंड टेस्ट सीरीज वो लोग बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज इज वेरी गुड देयर। तो वो लोग बाहर से भी 4 MI से इस बार हम लोग को लिए थे, तो बाहर से भी लेते हैं, और इंटरनल टेस्ट भी होते हैं। तो इंटरनली एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे।
So it's very good. Last time 32 people have been selected last year in 2024 out of 150 160 students. तो इतना इतना से भी 132 प्रोवाइड काफी ज्यादा है। जितना आरसीए है सबसे ज्यादा आई थिंक जामिया से ही रिजल्ट अच्छे से आते हैं। देयर हैज बीन कैंडिडेट लाइक श्रुति शर्मा who was in the Jamia and she was the rank 1 in the UPSC exam also. So Jamia is a very good RC एक अच्छा ये है सब्सिडाइज आपका। it will save your pockets, it will save 5 lakhs a year of you। तो मुझे भी काफी हेल्प किए, मेरे भी काफी पैसा बच गए वहां पे। यू विल हैव टू पे 1,000 ए मंथ उसके लिए खाना के लिए। तो वहाँ 2,000 ए मंथ, तो इट्स वेरी लेस। तो आप अच्छे से रह सकते हैं वहाँ पे, हर चीज मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट 20 to 30 विल बी ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, आईपीएस, आईआरएस, IRMS, ऐसा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, दे वांट टू इम्प्रूव देयर रैंक एंड गेट आईपीएस और आईआरएस आईएएस। सो बहुत सा लोग है आईआरएस एंड ऑल, तो आप वो लोग से भी बात कर सकते हैं। एंड यू कैन फील द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर कॉपीज। तो इट प्रोवाइड अ वेरी गुड एनवायरनमेंट देयर। हो सकने से do give test there। So V2 Media is there, IS. It's in the YouTube also and it's in the Telegram also to keep, because many a times हम लोग को पता नहीं रहता इसका कब नोटिफिकेशन आते हैं। यूजुअली प्रीलिम्स से आगे, प्रीलिम्स के बाद होते हैं। जो यूपीएससी प्रीलिम्स होता है उससे ठीक बात होते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन यूजुअली यूपीएससी प्रीलिम्स से दो महीना पहले ऐसा को आ जाते हैं। तो अगर आप V2 मीडिया आईएस में अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए तो यू विल गेट टू नो अबाउट अभी आने आ गए अभी आने वाले हैं बोल के। एंड ऑल्सो दे हैव यूट्यूब चैनल, सो यू कैन गेट एक्सेस टू इट। So this is all about from my side, and if there is any questions, I will take now. Thank you very much, Chibu. So we will Yes, sir. start with the Q&A sessions ना। तो Yes, बहुत sir. सारा क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो Okay. जामिया मिलिया वाला एक्चुअली ही said it very rightly, क्योंकि जामिया मिलिया I also was selected twice। once I could not get into in interview round से आउट हो गया था, बिकॉज उसमें हम हिंदी बोलेगा बोल दिया था, एंड देन देयर हिंदी वाज वेरी डेंजरस ना। तो ये एक गलती हो गया था। एंड देन सेकेंड राउंड में बिकॉज ऑफ सम रीजन आई कुड नॉट ज्वाइन द कोर्स, वहाँ में कोर्स हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बट आई वाज सेलेक्टेड। एंड देन यूपीएससी का इफ यू क्लियर प्रीलिम्स एंड देन इफ यू अप्लाई, ठीक है, Yes, yes, देन yes. 90% चांसेस है कि यू विल गेट अ सीट देयर। तो जाना है, ठीक है। आई कुड नॉट गो बिकॉज माई एपीसीएस प्रीलिम्स फर्स्ट दिया, अभी याद आ गया। लेकिन वो एपीसीएस प्रीलिम्स भी फिर से कैंसिल हो गया था, दैट इज वन थिंग। तो एपीसीएस ने ऐसा करके बहुत सारा चीज को डिटेल किया। तो चिबू और हम जब फर्स्ट टाइम बात किया था, आई थिंक 2020 में, जब ये ग्रेजुएशन के बाद ही कॉल्ड मी अप ना, कहीं से मैसेज करके बात हुआ था, एंड वी टॉक फॉर अराउंड 40 minutes। देन ओनली आई रियलाइज दैट ही इज अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि हम भी खुद भी, आई वाज आल्सो नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन हम पढ़ता बहुत था। अभी भी हम बहुत पढ़ता, अभी भी हम 6 to 8 hours तो ऑफिस जाने से भी पढ़ लेते हैं अभी भी ना। तो वो तो बहुत पढ़ता है, उसका हम देखता है, ठीक है। एंड देन जब हम लोग 2023 में मिला था एंड वी गेव मेंस टुगेदर, हम दोनों ने मेंस एक साथ दिया है, एक ही होम स्टे में बैठ के हम दोनों ने दिया है। तो आई कुक फॉर हिम ऑल्सो ना। हम Yes. खाना भी बनाया है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि इतना मोटा किताब लेके आता था, बट आई सजेस्टेड एट दैट टाइम ओनली कि इसको हाँ, छोटा करो नोट्स को पता करो। ना, Yes, छोटा करो बोल के हम बोला। एंड देन आई सॉर्ट माई नोट्स कि ये देखो ऐसे छोटा छोटा नोट्स बनाओ, इट विल बी हेल्पफुल। बट वन थिंग इज गुड दैट ही रियलाइज इट वेरी अर्ली। तो आप लोग का भी एक ये है कि जो जो अभी छोटा स्टेज में है ना, आई रियलाइज इट आफ्टर 30, जब हम 30 एज हो गया था उसके बाद हम रियलाइज किया। देन 2023 में, जबकि हम 2010 में फर्स्ट मीन्स यूपीएससी दिया है, 2023 में हम ऐसा छोटा नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसका 23 में रियलाइज हो गया, होपफुली इस बार ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो चीप कमिंग डाउन टू एपीपीएससी मेन प्रीलिम्स ना, हाँ। 2020, ठीक है। तो उस समय में यू फेल्ड, ओके, आप मेंस में फेल हो गया था, डिस्पाइट Yes, हैविंग हिस्ट्री एज योर ऑप्शनल। yes, yes. तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल था, एंड देन फर्स्ट पेपर में बहुत सारा हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आ हाँ, जाता है। तो yes, आप yes. 1 मार्क्स में 2 मार्क्स से फेल हो रहा है, सो योर मार्क्स आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट व्हाट वर द रीजंस कि आप उसमें फेल हो गया था, क्या लगता है Yes. गलती? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को। फर्स्टली दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम, दैट वाज द फर्स्ट JS1। तो एक हो गया था हम्म, कि देख के क्वेश्चन देख के नर्वस हो गया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि हम तो नया लड़का है,
आई एम न्यू बैच, आई एम नॉट टेकिंग कोचिंग एंड ऐसा सोचने लग गया. सो वन थिंग यू ऑल शुड रियलाइज इज, इफ द पेपर इज टफ, तो इट इज टफ फॉर एवरीवन. सो इस समय भी इस साल के हिस्ट्री ऑप्शनल भी काफी टफ थे, स्पेशली पेपर 2. तो वन थिंग आई रियलाइज कि इसमें तो अभी बहुत सा लोग होंगे कि दे वुड बी वेरी लाइक, अभी तो ट्रॉमा में होंगे कि कैसा डील करें, तो डे सोचने में ही वो लोग का टाइम चला जाता. तो दिस हैपन विद मी, दैट वाज द फर्स्ट पेपर. एंड तो हम सोचा कि सब लोग लिख रहे हैं, तो हम, आई एम नॉट एबल टू, यू नो, मेरा पास इतना प्रिपरेशन नहीं होता हुआ. सोचते यही सोच जो यू आर, आई वाज वेरी नेगेटिव अबाउट इट एंड आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर. अगर मैं जस्ट हाँ कुछ भी लिख देता ना तो भी हो जाता. आई जस्ट अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चंस. तो इतना तो होने से तो दैट इज, यू कांट गेट ए मार्क्स. आई गॉट 75 एक्चुअली. 8 मार्क्स से मिस हो गए थे, डिस्पाइट हाँ हाँ गेटिंग अराउंड 900 मार्क्स इन मेंस. जाकि हालांकि 790 में ही सिलेक्शन हो गए थे तब समय भी. तो इन ओनली इन पेपर 1 बिकॉज ऑफ माय ओन ये के नेगेटिविटी की वजह से. सो आई, द फ्रेश एस्पिरेंट शुड कीप दिस इन माइंड इन द एग्जाम. और डोंट गेट, यू नो, ये कुछ हो जाने से मत डर जाइए. इफ इट इज टफ, इट इज टफ फॉर एवरीवन. एंड एट दैट टाइम यू शुड यूज दिस कि इट इज टफ फॉर एवरीवन एंड यू शुड टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी. दूसरा लोग डर रहे होंगे, आप इसको पॉजिटिव में लेना है. दिस हैपन, इस बार मैंने इसको करेक्ट किए हैं इन माय ऑप्शनल सब्जेक्ट. ग्रेट, थैंक यू. तो यस. लास्ट टाइम भी इसका जो मार्क्स था चीबू का, इट वाज अराउंड, ही वुड हैव बीन गेटिंग सीओ इजीली उस समय भी, उसके हाँ. मार्क्स. तो डिस्पाइट डूइंग एनी कोचिंग, उस समय तो कुछ कोचिंग नहीं था, अभी जो मटेरियल आप देख रहे हैं वो सब भी नहीं था, बट स्टिल ही हाँ. वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स उसमें भी. मेंस का आप देखने से, इवन एसए में भी आई थिंक 189 यू गॉट इन यस. एसए. तो इस बार तो और ज्यादा हुआ होगा. तो ये देर एंड देन कमिंग डाउन टू एनसीईआरटीज, व्हेनेवर आई टेल माय स्टूडेंट्स टू रीड एनसीईआरटी, तो उसको भी हम निकाल दिए कि एनसीईआरटी ये पढ़ो. बट व्हाट दे डू इज, सर हम तो जिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, दे सेंड मी द फोटो कि सर हम जिस्ट पढ़ लेगा ना, तो इसमें ज़्यादा फैक्ट हमको याद आ रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक कि एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि ना जिस्ट पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी आपका, ये मैं हमको मेरा हिसाब से कि फर्स्ट में बिल्ड करना, जैसे कि इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इफ यू हैव लेफ्ट आपका जो ये सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को काफी साल पहले छोड़ दिए हैं, तो आपको हम्म. बेसिक एक शुरुआत करने से, रादर देन गोइंग फॉर बिग बुक्स, क्योंकि आपको बोर हो जाएंगे आपको अगर आप डायरेक्टली बड़ा बड़ा बुक्स ये करेंगे, तो आप बोर. उससे अच्छा तो आप शुरुआत, इफ यू कीप इट लाइक सिंपल, तो इट विल बी हेल्पफुल. बट अगर आप ऑलरेडी आप बीए कर चुके हो और ये से आप ऑलरेडी ये ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में टच है, तो आई थिंक कि उसको इतना करने का जरूरत नहीं है. यू शुड गो फॉर योर द स्टैंडर्ड बुक्स. तो क्योंकि मैंने तो फर्स्ट में पढ़े हैं एनसीईआरटीज, लेटर ऑन आई रिलाइड मोस्टली ऑन द स्टैंडर्ड बुक्स. एंड जो, लेकिन ज्योग्राफी में तो आई, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री उसमें तो आपके बहुत ये हेल्प करते हैं. ज्योग्राफी स्पेशली 11 12 के, तो उसको आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी के. थैंक यू. एंड देन नेक्स्ट कमिंग टू द आंसर राइटिंग. तो यस. आंसर राइटिंग में जैसे कि व्हेन इन 2023 व्हेन वी मेट, यू आर राइटिंग इन बुलेट फॉर्मेट, राइट? तो यस. बुलेट यस. बुलेट में आप लिखते थे हिस्ट्री को भी. So अभी someone is asking कि how the answer of GS should is different from the answer of optional. तो आप क्या बोलना चाहेगा इसके लिए वही आंसर? I was saying in the session also कि this mistake I was being committing for quite long time, and this is how I suffered in the UPSC also. I was getting good marks in the GS, but optional में कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह रहा था UPSC में. तो this I realized last time by analyzing the toppers copy. तो आपको थोड़ा सा, आपको उसमें ज्यादातर एक्सप्लेन करना होता है. आपको ऑप्शनल में थोड़ा एक्सप्लेन करके और पैराग्राफ फॉर्मेट में ज्यादा अप्रिशिएट करता है, rather than writing a just single line और बुलेट एक लिख दो, क्योंकि बिकॉज इट लुक्स वेरी जनरल एंड आपको जीएस जैसा लगता है, तो आपको पनिश कर सकते हैं आपका एग्जामिनर अगर ये कर सकते ये है तो, क्योंकि यू हैव टू मेक इट डिफरेंट बिकॉज they have keep optional for some purpose, right? They want to check your depth of understanding in certain questions. You should not be writing the same answers in the same way as you were writing in the in the GS1. So make it like use scholars more and more, use historians, and write it in a paragraph as well as write in the, even if you are writing in the points, but make it, there should be 2 3 lines, please. सॉरी, रिगार्डिंग द एसे, Yes, जो sir. आपने 2020 में फर्स्ट एसे लिखा था मेरा हाँ. साथ,
हाँ हाँ हाँ। तो स्टूडेंट लोग उसको पूछ रहे हैं ना, तो आई आई वुड लाइक टू शेयर दैट ऐसे विद द स्टूडेंट्स बाद में क्लास में ना, इट इज ओके आई थिंक। यस एंड यस श्योर श्योर। देन लास्ट टाइम आपने जो भेजा था, इस बार का जो टेस्ट, इस बार में जो भेजा था, टेस्ट तो नहीं लिया था आपने, हमको कॉपी भेजा था, इवोल्यूट कर हाँ लो थोड़ा पॉइंट्स ना। हाँ हाँ। तो ऑल्सो बोट द टेस्ट कि आप कैसे लिखता था ना, कि ओके फर्स्ट ऐसे एंड देन द रिसेंट ऐसे आफ्टर 5 years ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज ओके। दैट विल शो योर जर्नी। लेकिन आप पहले भी बहुत अच्छा लिखते थे, तो कमिंग डाउन टू द ऐसे, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता था ऐसे में? क्योंकि जब हम देखता था तो आपका ऐसे में बहुत ज़्यादा डेंसिटी, बहुत सारा फैक्ट्स, एकदम डेटा पूरा भर्ती रहता था, कि इतना सारा इसका पास नॉलेज ऐसे लगता था ना पढ़ के। तो आपको क्या लगता है, इतना डेटा होना, इतना फैक्ट्स होना किसी का पास नहीं भी हो सकता है, तो वो जरूरी है कि आपका? नहीं जरूरी तो नहीं है। ऐसे शुड बी लाइक डिफरेंट टॉपर्स आई हैव सीन कि कोई कोई लोग काफी नॉलेज को भी अपने शो करते हैं अपना। और कोई कोई होता है कि इसका राइटिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं, जैसे कि नाचुम सर का बहुत राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो उसी को भी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉलेज, अगर आपका राइटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छा नहीं है, तो यू हैव टू यूज योर नॉलेज एट दैट टाइम। आपका राइटिंग स्किल्स तो, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, तो आप इमिडिएटली आपको डेवलप नहीं करेंगे। तो आप उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा आप उसको जस्टिफाई करने के लिए, स्पेशली मुझे लगता है कि अभी जैसे कि आपका पीवाईक्यूज इस बार जैसे आए थे, तो चैट जीपीटी से मैंने यूज किए हैं काफी आर्गुमेंट्स लोग को, फिलोसफीज लोग को, तो ये सब प्रिपेयर कर लेना काफी अच्छे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऐसे, तो इट वाज आई वुड रियली थैंक सर कि आप इतना जल्दी शुरू कर दे, क्योंकि आई आफ्टर जस्ट रीडिंग 1 month एनसीईआरटी भी खत्म नहीं हुआ था, तब से मैं लिख रहा हूँ सर के साथ ऐसे को। ऐसे तो कम्प्लीटली आई विल क्रेडिट माय सक्सेस ऑफ ऐसे टू सर, बिकॉज उसमें ही मेरा डेवलपमेंट हुआ है। उसी में आई वाज राइटिंग एवरी ऐसे दैट ही वाज प्रोवाइडिंग, एंड दैट टू इट वाज फॉर फ्री एट दैट टाइम। तो हम्म। हम लोग तो लगते थे कि तो ऐसे कोई ऐसे ये, कोई एपीसीएस ऑफिसर को अप्रोच करना ही मुश्किल होते थे। एंड एट दैट टाइम ही वाज गाइडिंग अस एंड इट वाज ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। ठीक है, उस समय आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। उस समय किसी लेडी ने हमको मैसेज किया, जबकि सब कुछ फ्री था, बट उसने हमको बोला कि सर अभी आप क्यों शुरू कर रहे हैं, अभी मेरा नहीं हुआ है, आप थोड़ा 1 महीना बाद शुरू करो। ऐसे भी गाली देते हैं स्टूडेंट लोग, बड़े यूनिक यूनिक होते हैं। ठीक है, एक लेडी ने हमको कॉल करके बोला, लिटरली कॉल करके, मेरा नंबर अवेलेबल था हर जगह, अभी भी अवेलेबल है। तो ये एक चीज हो गई। एंड देन यू आर रेफरिंग टू चैट जीपीटी अगेन एंड अगेन, सो यस। आई वुड लाइक टू आस्क कि लास्ट टाइम व्हेन देयर वाज टेस्ट सीरीज, माय टेस्ट सीरीज, so some students were telling me कि they obviously they did not clear, so they were telling me say हम तो चैट जीपीटी से लिख रहे हैं आंसर्स, राइट? तो अभी ये बता दीजिए कि टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली इम्प्रोवाइजिंग एंड देन वी हैव टू यूज इट वेरी, क्या बोलता है उसको, एफिशिएंटली ना, डिलीजेंटली यूज करना पड़ता है। तो कितना चैट जीपीटी यूज करना चाहिए, देन आंसर राइटिंग में कितना यूज करना चाहिए, मतलब क्यों, क्या मतलब पूरा डिपेंडेंट हो जाना है क्या? ठीक है, तो डेट इज ऑल्सो वन थिंग, क्योंकि बहुत लोग अभी क्या करेंगे, चैट जीपीटी में घुस जाएगा स्टूडेंट लोग। सो थोड़ा सा उसको भी एक क्वेश्चन भी दे दीजिए कि कितना यूज करना जरूरी है, आपने कैसे यूज किया था? ओके सर, as I said कि in the beginning I have referred my notes, you सुनिया IAS notes, कुछ भी इंस्टीट्यूट के सर के भी नोट्स मैंने देखे हैं इस बार, तो इट वाज वेरी गुड। आप एक नोट्स पकड़िए, तो यूज चैट जीपीटी एज ए टू डू वैल्यू एडिशंस। अगर आपका नोट्स में ही नहीं है वो चीज, तो आप यू कैन यूज इट, अगर चैट जीपीटी से यूज करता है। और अगर आप यूज चैट जीपीटी से कर रहा है बोलने से भी मेक श्योर कि कुछ अदर देर आर अदर सर्च इंजिन्स भी है जो लाइक चैट जीपीटी, तो उसका आंसर्स को भी एक बार देख ले। कभी कभी चैट जीपीटी के आंसर्स जो कभी कभी इतना अच्छा नहीं होता, मेक श्योर कि आपका आप उसको जान सके कि इट इज ए गुड आंसर और नॉट, आर्ग्यूमेंट सही लगता है, तब आप उसको ये कीजिए। कभी कभी एक अच्छा, क्योंकि हर आदमी अगर चैट जीपीटी यूज करेगा तो everyone will get to know कि they are writing the same points, because ChatGPT most likely they give the same points and same arguments. तो आप it will look very monotonous to the exam evaluator. So make sure कि आप नोट्स भी पढ़ें और वैल्यू एडिशन कीजिए चैट जीपीटी से। एग्जैक्टली, तो डेट इज लाइक वेरी करेक्ट। चैट जीपीटी को जब यूज करके बी वेरी कॉशियस, बिकॉज दे गिव रॉन्ग आंसर ऑल्सो। ठीक है, दिस यस टाइम यस। सम, दिस टाइम इन स्पोर्ट्स देयर आर सम रॉन्ग फैक्ट्स दैट आई हैव गिवन, आई विल रेक्टिफाई इट। जो हम ऑफिसर्स डाइजेस्ट एक निकलता है, उसमें सम फैक्ट्स वर रॉन्ग, क्योंकि हम उसको चेक नहीं किया था। वी हैव टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, बार यस बार देखना पड़ता है। एंड देन पेड वर्जन इज डिफरेंट, बिकॉज आई हैव अ पेड वर्जन, तो व्हेन आई ट्राई इन पेड वर्जन द आंसर इज डिफरेंट, व्हेन आई ट्राई इन फ्री वर्जन द आंसर्स एंड डेटा आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये
एक चीज है, तो यूज इट वेरी कॉशियसली स्ट्रक्चर वगैरह को देखने के लिए। Yes, yes. एंड देन रिगार्डिंग ऑप्शनल, तो जैसे कि एक यहाँ में भी एक स्टूडेंट है जिसने ऑप्शनल चेंज कर लिया है ना, तो इवन इफ यू टेल देम 1000 टाइम्स की ऑप्शनल इंटरेस्ट का पढ़ लो, अपना सब्जेक्ट लो, ठीक है, तो वो नहीं ले पाते हैं ना। तो ये एक चीज़ होगी। तो लास्ट टाइम जैसे कि आपने भी हिस्ट्री, सडनली आपने हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस में मूव कर लिया था, डिस्पाइट मी टेलिंग सेवरल टाइम्स कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मार्क्स देख लो, मार्क्स देख लो, तो आपने लेकिन कोचिंग ले लिया, ठीक है, Yes. पैसा भी वेस्ट हो गया। तो इसमें स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा आप बता दीजिए कि जब ऑप्शनल चेंज करना है पढ़ने से, इफ दे हैव टू चेंज देयर ऑप्शनल एट ऑल, तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, ऑप्शनल को कब चेंज करना चाहिए? फर्स्टली हमको लगता है कि आप पहले एनालाइज कीजिए कि ये ऑप्शनल में आपका, जैसे कि आप कोई अटेम्प्ट्स दे चुके होंगे तो उसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उसमें देखिए। और आपका रिसेंट ट्रेंड में कैसा चल रहा है, और वो ऑप्शनल कुछ काम कर, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल्स काफी इयर्स तक इतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, और शायद मे बी यू माइट लेक एप्टीट्यूड। अगर आप कॉन्स्टेंटली आप गिर रहा है, तो डिस्पाइट ऑफ वर्किंग, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द लैक्यूने, अगर आप ये इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। कुछ एप्टीट्यूड आपके जो ये है इंटरेस्ट में अगर देखें, तब आपको लगता है कि ये करना चाहिए। द रीजन आई वॉज सो मीन्स, मेरा जो गलती था कि आई वॉज वेरी हरी एंड आई टुक डिसीजंस एब्रप्टली विदाउट कंफर्मिंग माई फैक्ट्स। मेरे तो इतना अच्छे से आए थे ऑप्शंस में, डिस्पाइट दैट आई डिड नॉट वेट फॉर माई RTI, I did not see my marks, how I was faring in the exam. So one should be very cautious. Look at your marks, how much you are getting, and then decide कि आपको ऑप्शनल चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, ओके, देन कमिंग डाउन टू द न्यूज़पेपर्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो ये 2-3 पढ़ेगा, ठीक है, हाँ। कितना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एंड देन न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है ना? नहीं, माई आई ऑलवेज बिलीव दैट न्यूज़पेपर शुड बी रेड, बट मेनी स्टूडेंट्स दे टेल मी सर हम तो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा करके बताता है। तो हाउ शुड बी अप्रोच यू न्यूज़पेपर्स, एंड कितना समय लगा था आपको इनिशियल डेज में, एंड देन अभी कितना समय लगता है? यस, न्यूज़पेपर रीडिंग इज इनएविटेबल। इसको तो बहुत जरूरी है, हमको तो लगता है इन इन आवर प्रिपरेशंस, नॉट ओनली इन प्रिपरेशंस। ये हम लोग का, एज आई सेड कि दिस प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ जर्नी फॉर आवर सिविल सर्विसेज। वी हैव टू बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, अराउंड द वर्ल्ड। वी हैव टू नो। So you don't have to make, initially I was making notes out of it when I was in college or 2020 look में, तो हम notes भी बना देते हैं। I was taking almost 4 hours sometimes, तो बहुत काफी लंबे जाते थे। सो आई थिंक कि आपको नोट्स बनाना जरूरी नहीं है वहां से, लेकिन कॉन्स्टेंटली बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इज वेरी नेसेसरी फॉर अ सिविल सर्वेंट। एंड आपको इसको इम्बाइब कर लेना चाहिए। नॉट everything you have to read, but you have to, you don't, I would suggest not to rely on someone's video for these things, newspaper, because I have to, you have to be, self reliant, आत्मनिर्भर के बारे हम लोग दिन भर बात कर रहे हैं, तो why not us, right? We have to be आत्मनिर्भर even in reading newspaper. There might be a place, आपको जब ये करेगा, तो you have to learn the skills to read newspaper rather than depending on these videos and all. तो दिस इज अ कॉमन थिंग दैट एवरी टॉपर विल टेल यू, ठीक है, एवरी सीरियस टॉपर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आई रीड नाउ डेज ऑल्सो, आई रीड इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम ना। तो ये एक चीज है, ठीक है। एंड देन रिगार्डिंग द इंटरव्यू, ठीक है, सॉरी, हाँ, सॉरी, रिगार्डिंग द इंटरव्यू, ठीक है, जो इंटरव्यू होता है, तो Yes. उसमें यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्केप्टिकल बिकॉज योर इंग्लिश, राइट, जो इंग्लिश Yes. हो गया था उसमें थोड़ा जंग लग गया था, बहुत दिन से नहीं था, एंड देन यू गेव अराउंड 18 मॉक्स एज फार एज आई नो, यू गेव Yes. 18 मॉक्स। तो हाउ पर फॉर दिस मॉक्स आर नेसेसरी, इतना मॉक्स, क्योंकि आई टोल्ड यू टू गिव 1 or 2 मॉक्स, ठीक है, Yes. बट डिस्पाइट दैट देखो जितना होने से भी वी हैव आवर फोमो ना, होता ही है, तो आपको जानना है कि टॉपर का भी फोमो होता है। तो इसने Yes. 18 मॉक्स दिए, तो आपको क्या लगता है कितना मॉक्स देना चाहिए, एंड देन हाउ फॉर इंग्लिश इज नेसेसरी, कि हम लोग का ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू में कितना जरूरी है? Yes. First of all, English तो आपको, at least you should be able to communicate what you are thinking. So it is very much essential. Make sure you don't learn to speak lavish और बहुत आपका stylish English
नहीं भी जरूरत है, you must be able to communicate nicely what is your opinion and what is your views. And yes, FOMO की वजह से I gave lot of mocks, 18 mocks ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरे दोस्त से भी, जामिया के लोगों से भी मैंने बार बार वो लोग को रिक्वेस्ट करके एक ग्रुप भी बना दिए थे मैंने कि यू शुड टेक ए मॉक्स। आप लोग कि दे आर आल्सो IRS, दे आर आल्सो IPS, सो आई टुक हेल्प ऑफ देम, आई यू हैव टू टेक ए मॉक्स। तो ऐसा कर करके मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स लगा लिए। तो ये चक्कर में क्या हुआ कि प्रिपरेशन करने का ही समय नहीं मिला। आई वॉज जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग, बट I did not, gone through my own subjects with me. तो कहीं ना कहीं this affected me because the questions were mostly on my background. I was very confident with my history. तो मुझे लगा था कि हिस्ट्री से 5 साल से मैं I was reading history and general science, general studies। तो वो लोग काफी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री क्वेश्चन पूछेंगे, बट 80% दे मोस्टली रिवॉल्व अराउंड माई एग्रीकल्चर thing. So where I somehow felt I could not answer properly in that. इसलिए मेरा इंटरव्यू में थोड़ा सा I was disappointed after my interview. And also make sure कि आप I did agriculture engineering, but if you are an agriculture engineering student, make sure कि आप थोड़ा एग्री BSc का भी क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्रॉप्स का रिलेटेड अच्छे से पढ़ के जाए, बिकॉज दे विल बी एक्सपेक्टिंग। हम सोचा कि मशीन्स लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो दे विल बी आस्किंग अबाउट द मशीन्स। आई लिटिल बिट रिवाइज दोस थिंग्स। एंड ऑल्सो आई वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट, तो थोड़ा वो सोचेंगे कि अच्छे से जानते होंगे बोल के। तो आई कुड नॉट आंसर प्रॉपर्ली इन स्पेशली हॉर्टिकल्चर एंड ऑल BSc के थोड़ा रिलेटेड में। सो somehow I was disappointed with my with my PT. ओके। एंड देन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज करके रखा है। आई स्टिल रिमेम्बर योर मैसेज की सर विजन में इतना आना सही है क्या? ठीक है ना। आई टोल्ड यू कि आई गॉट 67। हमको भी 67 मिला था व्हेन आई गिव फर्स्ट टेस्ट इन विजन, डिस्पाइट स्टडिंग पॉलिटी फॉर अराउंड लाइक अ डेकेड। ठीक है, उसके बाद भी हम देख के 67 मिला था ना, बिकॉज सीरियसली नहीं देते हैं। तो अभी जब स्टूडेंट लोग को हम बोलता है कि आप PYQ करो, ठीक है, तो उन लोग क्या बोलते हैं कि जैसे सर हम किया है, तो कितना साल का किया है, बोलने से 5 साल का किया है बोलता है ना। एंड देन वो भी थोड़ा थोड़ा किया है। तो PYQ इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा वाला सही है ना गलत है, वो भी बता दीजिए स्टूडेंट लोग को। PYQs को तो आपको अच्छे से, यू हैव टू डू इट वेरी थ्रोली। दिस मिस्टेक आई वाज कमिटिंग। आपको ये PYQs को ही आपको रियल गाइड मान के चलना होगा। PYQs को स्पेशली ऑप्शनल के लिए तो मैंने एवरी सिंस 1980 से लेके सारे PYQs को, बिकॉज PYQs आर रिपीटेटिव, दे विल रिपीट। स्पेशली जनरल GS तो थोड़े बहुत, इफ यू डू 10 years के अंदर से, इफ यू डू PYQs ऑफ GS देन इट इज ओके। बट आपको ऑप्शनल के काफी, क्योंकि दोज आर स्टेटिक्स मोस्टली, तो ऑप्शनल को अच्छे से करना है, 20-30 years पहले से ही करना है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी रिपीटेटिव, और आंसर्स क्वेश्चंस जो न्यू डायमेंशंस में होंगे, बट तो आंसर्स विल बी सेम इन डिफरेंट, दे विल आस्क इन डिफरेंट वे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी थोरो विद स्पेशली विद रिगार्ड्स टू ऑप्शनल ये को आपको अच्छे से करना चाहिए, GS को भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू। एंड देन रिगार्डिंग आवर्स ऑफ स्टडीज, कोई कोई 6 घंटा बोलता है, कोई कोई आप जैसे कि 17 आवर्स आपने पढ़ा है एक दिन अप्रैल में। तो आई ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी 17 to 14 आवर्स, बिकॉज वेरी राइटली सेड कि आवर्स डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी ना, कि आप कितना करते हैं। बट आई ऑलवेज थिंक कि 8 आवर्स तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पढ़ाई का जो टाइम होता है, तो कोई कोई बोलता है हम दिन को नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ रात को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज योर अप्रोच? दिन में ना रात में, सुबह को ना शाम को, आई मीन। I was a night person, so I used to study lately. So I was constantly monitoring my study hours. तो किस तरह I was using डिजिटल कैमरा और सॉरी डिजिटल ये वॉच, तो उससे यूज करते थे। आजकल तो YPT यूज करते हैं। तो I was constantly monitoring, and usually I would come library by 8 to 9 या फिर कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, and I would study till 3। तो हार्डली एक चीज ये आप लोग भी ये कीजिए, when you are going to, phone is the most distractive things, it is very important, very आजकल बहुत जरूरी भी है, but it is most distracting also। so make sure while going to library फोन को मत ले जाइए, because again you will waste a lot of time
in phone. So phone को आप रखिए, मैं हमेशा जाता था, whenever I used to go to library, I would leave my phone in the room and we'll stay entire day in the library. कभी कभी सिर्फ इमरजेंसी होने से ही यूज करते थे, आईपैड ले जाते थे. iPad make sure that you don't have the social media again account there. टेलीग्राम हो सकते हैं, but others should not be there. Yes sir. थैंक यू. मेरा लाइट चला गया है, तो नेट भी तरह चला गया था. एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. हाँ, हमको अभी भी याद है कि आपका फ़ोन मेरा पास था 2023 का मेंस में भी. हम Yes. सोचता था कि ये क्यों अपना फ़ोन नहीं ले जाता है करके. ठीक है. तो तो फ़ोन इज़ अ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग थिंग. सही बोला है. तो जो सोशल मीडिया का बात होता है कि किसी ने बोला था कि सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए अपडेट रहने के लिए. ठीक है. तो कितना सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए? आप तो पूरा ही डिस्कनेक्ट कर दिया था एज़ फार एज़ आई नो, बिकॉज़ आई कुड नॉट फाइंड यू इन Yes, सोशल मीडिया. हाँ, yes, yes. तो So बाकी को क्या सजेस्ट करेगा? हाँ. so yeah, because आप पहले तो आप खुद को एनालाइज, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि आपको खुद को पहले जानना ही होगा. मेरे लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सोशल मीडिया. अगर आप मेरे पास होगा तो आई नो कि आई वुड बी समवॉट समहाउ टेम्प्टेड टू डू इट. तो अगर हुँ, आपके पास बहुत सा कैपेसिटी है, कंट्रोल कैपेसिटी है, तो आप यू कैन यूज इट सोशल मीडिया. अगर आप उसमें बहुत कंट्रोल सिर्फ शाम को है या फिर 1 घंटा 2 घंटा यूज करते हो, तो लाइक टीना दाबी मैम ऑल्सो सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यू दैट शी यूज्ड टू यूज इंस्टाग्राम एंड एट नाइट 12 to 1 वो एक पर्टिकुलर टाइम को रखते थे when she would be using social media. So वो बहुत डिसिप्लिन्ड है. She was very रेजिलियंट. तो लेकिन हम में वो चीज नहीं है. तो यू हैव टू नो योरसेल्फ कि आप टेम्पटेड होते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ अगर इससे, तो यू शुड अवॉइड इट रादर देन ट्राइंग इट. तो सोशल मीडिया कैन बी डिस्ट्रैक्टिव. इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, अगर आप टाइमली यूज करते हैं तो. बट यूजुअली सोशल मीडिया हमको लगता है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, वेयर यू नीड, सर सेड कि 8 hours तो आपको जरूरी है ही है फॉर दिस प्रिपरेशन. सो यू नीड टू रिड्यूस योर टाइम ऑफ वेस्टेज बिकॉज यू हैव टू डू अदर वर्क ऑल्सो. अच्छा एक्टिविटीज को, आपका हॉबीज करना है, आपका फिजिकली फिट रहना है. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू. सो दिस आपको बैलेंस करना होगा. तो सोशल मीडिया जो जो चीज से आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसको लिमिट कर देने से इट वुड बी माय एडवाइस टू यू. ओके, थैंक यू. एंड देन यू टोल्ड अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज़ ना, शुरू Yes, में आपने बताया. yes, तो यहाँ में बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियल इश्यूज़ है. ठीक है. yes, sir. तो उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ टू बेसिकली जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो एक प्रेशर आता है दिमाग में कि टेस्ट लेना था बट नहीं ले सका. ठीक है. तो दिस थिंग्स Yes. आर देयर, क्या मेरा नहीं हो पाएगा क्या? तो हाउ हम्म. कैन वी ओवरकम दैट फाइनेंशियल जो इशू है, चैलेंज है, उसको क्या मेंटेलिटी रहना चाहिए हम लोग? उसके लिए तो हम वही बोलेगा कि इफ यू हैव अ विल, देन आपका रास्ता ओपन अप होते जाएगा. फॉर एग्जांपल, आई स्टार्टेड डिस्पाइट ऑफ हैविंग द फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल, आई constantly I performed and I proved myself कि हम कुछ कर सकते हैं. Okay. तो देयर वुड बी मेनी टाइम्स कि लोग सोचते हैं कि अच्छे हैं ये, अच्छे से. आई मेट न्यातुम दोके सर ऑल्सो. That time initially he helped me without no money. He has not taken any money. तो उसी के कारण से I with his guidance I was able to clear APSC prelims after just 3 months or 4 months of preparation. तो after my graduation, तो उसके कारण से लोग भी जानने लग गए कि he has a potential and he was throughout his journey. He was good in studies as well. I constantly prove myself through my journey in my studies that I was capable. तो उसी के कारण if you अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करता रहना चाहिए. गॉड विल डेफिनेटली ओपन अप योर वे. हमको 2020 के बाद आई क्लियर्ड एपीएससी प्रीलिम्स. तो मेरा सोसाइटी लोग ने भी हेल्प किए हैं. फिर आफ्टर 2022 में क्लियर किए हैं, तो गवर्नमेंट भी 2 lakhs दिए हैं. And I was able to sustain like that. I was clearing prelims every year. I was getting money from my society. Even sir provided me twice through Gyan program. Once he provided 1,34,000, and second time he provided this year 74,000. So like that, I was constantly getting help even from my society, Kalom society.
Lombus, and from my family, big family, I have a big family. Although they might lack in the resources, but they have a big heart, and they were constantly, सब मिलके मुझे सपोर्ट कर रहे थे. तो आई फील दैट आपका विल होना चाहिए, आपका इंटेंट होना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए. अगर आपका मेहनत करेगा, आपका रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, और वही रिफ्लेक्ट जो एक आदमी के उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो यू विल बी हेल्प, एंड आपका रास्ता खोलते जाएगा. सो दिस इज हाउ आई सस्टेन, एंड आई गोट in RCA again last year because I was constantly reading. So RCA में last time I entered through ये RCA कोचिंग मेंस प्रोग्राम से आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स. फिर I also gave that time कि all India test also gave. So at that time also I got all India rank 1 in the RCA in entire India. So अब अगर आप मेहनत करोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके रास्ता खोलते जाएंगे. एंड सिंस 1 year आई बिन गेटिंग ए फ्री कोचिंग एंड रेसिडेंस देयर. सो आपको मेहनत करना चाहिए. आपका रास्ता, God will open up a way for you, and you will find your own way. That's all I want to say. थैंक यू. एग्जैक्टली ये सही बात बोला है. बिकॉज सी इफ यू वर्क हार्ड ना, इफ यू प्रूव योर सेल्फ, देन देर आर पीपल हु कैन हेल्प यू. ठीक है. एंड देन आई एम ऑल्सो ऑलवेज देयर. हम हमेशा बोलता है, आज भी एक स्टूडेंट को बोला है. आई एम ऑल्सो, अभी तो मेरे स्टूडेंट लोग भी बहुत सारा निकल गए. वी आर देयर फॉर यू. ठीक है. कुछ नहीं, एक एक 1.5 लाख तो वी कैन हेल्प क्राउड पुल करके भी. देन आई हैव अ ग्रुप ऑल्सो हु हेल्प इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना. तो ज़्यादा एज नहीं हुआ. आई थिंक ही इज 27 years old. Yes. हाँ, ही इज 27 years old. तो बहुत जल्दी इनको अभी इस बार भी मेंस दिया है. तो अभी जैसे कि यू कुड नॉट क्लियर मेंस फॉर लास्ट 3 times इन यूपीएससी. तो Yes. तो उसमें क्या इश्यूज रहेगी आपका, एंड देन व्हाट व्हाट विल यू चेंज इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आप बाद में भी देगा, आई एम श्योर. ठीक है. Yes. ये देना भी चाहिए. तो आप नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे? देन इस बार भी आपका ठीक ही गया होगा, आई एम होपिंग. बट इस बार क्योंकि क्लेश भी हुआ आपका इसका साथ में, Yes. एपीसीएस Yes. के साथ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या बेटर करना चाहेगा? जो भी अप्रोच है लास्ट 3 अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, एंड देन नेक्स्ट में क्या बेटर करेगा? Yes. लास्ट फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेरा कुछ कुछ इश्यूज भी आ गए थे. फॉर एग्जांपल, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट डेंगी इन दिल्ली. हम्म. तो उसमें भी डेंगी होके ही मैंने एग्जाम दिए थे. ऑल्दो आई वुड नॉट ओनली से कि बिकॉज ऑफ दैट आई लैक प्रिपरेशंस, मेरा इतना नॉलेज नहीं था कि आई वुड बी एबल टू गो पास थ्रू दिस. एंड सेकेंड टाइम भी कुछ इश्यूज हो गए थे. तो आपका आई वॉज नॉट दैट डिजर्विंग एट दैट टाइम. थर्ड टाइम में आई वुड से कि माई मार्क हैज इम्प्रूव. दैट इन माई फर्स्ट टू मेन्स आई मिस बाई 50-60 मार्क्स. तो 60-50-60 मार्क्स से मिस हुए थे. इस बार आई मिस्ड लास्ट ईयर इन माई आई मिस्ड बाई 19 मार्क्स. I got 665 and the cutoff was 684. तो 16 मार्क्स से रह गए. In my GS, I got good marks there in GS में काफी इम्प्रूव किए थे. लेकिन इन ऑप्शनल, एज आई सेड कि आई रोट इन कि ये पॉइंट वाइज में. तो पॉइंट वाइज में आई वाज वेरी एडामेंट. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल समटाइम्स. आई वाज वेरी एडामेंट. आई थॉट कि हम निकाल ही लेंगे. आई लैक दिस नॉलेज नहीं है. तो आई वाज कॉन्स्टेंटली collecting informations. I was revising, but I was not changing my writing style. तो ये चीज वन थिंग आई लेक. यू हैव टू लुक द टॉपर्स को हाउ दे आर राइटिंग, एंड अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए rather than jumping into it and then following the same trend. If you are making the same mistakes again and again, you will get the same result. So that was happening with my optional. So this time I tried to change, although 1 month तो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में ही निकाल दिए. दिस टाइम we only got two months for mains. So in spite of that I spent ये ऑप्शनल को अच्छे से दिए हैं थोड़ा. ओके, थैंक यू. तो माय लास्ट क्वेश्चन. Yes. अभी जैसे कि अभी आप बहुत सारा मटेरियल दिखा दिया, शून्य आईएएस वगैरह, ठीक है, घटना चक्र वगैरह. तो बहुत सारा स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहा था होगा. दे हैड देयर ओन नोट्स, ओन बुक्स, रेफरेंस. अभी उनको क्या सजेस्ट करेगा आप कि उनका अप्रोच क्या रहना चाहिए? बहुत लोग जंप करने की कोशिश करेंगे मटेरियल्स को लेके ना. तो व्हाट विल बी योर सजेशन कि क्या अप्रोच रहना चाहिए? वही है हम उसको. आई हैव एड्रेस दिस ऑल्सो. आप अगर आपका नोट्स ऑलरेडी है,
So don't again jump into other notes. Please stick to your notes. Have confidence in your notes. Just अगर आप वैल्यू एडिशन करना है, आपने अगर जस्ट किसी के इंस्टीट्यूट के आपने नोट्स दिया है, आपको उसको पढ़ लिए हैं, तो आई सेड कि आई वाज नॉट मेकिंग नोट्स. यू हैव टू मेक नोट्स एनी हाउ फॉर ऑप्शनल फॉर मेंस के लिए तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. तो आप नोट्स बनाइए, वही मटेरियल्स को यूज कीजिए. और अगर आप दूसरा से आप और बुक्स देखना चाहते हैं तो बुक्स मत देखिए. आई वुड से चैट जीपीटी यूज कीजिए, क्योंकि बुक्स देखने से आपका इतना टाइम चला जाएगा. यू हैव टू सर्च इट, अलग अलग मटेरियल से कौन सा टॉपिक सर्च करना पड़ेगा. तो रादर देन गोइंग फॉर इट, डायरेक्टली टाइप कीजिए चैट जीपीटी में, एंड वो नोट्स को आप उल्टा ज्यादा मतलब उसको एनहेंस कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए. जो आपका प्रेजेंट नोट्स है उसी को रखिए. डोंट गो फॉर ए न्यू नोट्स. Okay. And then lastly, congratulations आपको. Yes, And then sir. I am sure that you will become a very good officer. And Yes, then sir. I'm Thank sure you. of that. क्योंकि the kind of person you are suited to be a like circle officer, and then even for an IS you are very fit. Yes, I am thank you, sir. hoping to work together very soon ना. तो जैसे हम लोग ने पहले सपना देखा था, तो 5 साल का बाद फाइनली वी एक्चुअली बहुत पहले से ये चीज़ डिसाइडेड था कि वी विल डू द फर्स्ट सेशन, ही विल डू द फर्स्ट सेशन विथ मी, एंड देन इवन Yes. इफ ही क्लियर्स ही विल कॉल मी द फर्स्ट ना. तो ऐसा था. तो बेसिकली वो है. एंड देन आप जाने से पहले, ठीक है, स्टूडेंट लोग को 2-3 चीज मतलब बोल के आप चला जाइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट एडवाइस. एडवाइस तो बहुत दे दिए हैं अभी. अब क्या करें, हम वही बोलेंगे कि डोंट गिव अप. आप ये रखिए, आप भरोसा रखिए. हैव ए सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नो योरसेल्फ. दैट इज वेरी एसेंशियल. rather more than knowing about the UPSC, you have to know about yourself, about your strengths and weakness, and then work. You cannot have the same strategy that I have. You cannot have the same materials I have followed. You cannot have it. तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी को डिवाइस खुद करना पड़ेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका लाइकनेस के हिसाब से. सो प्लीज अंडरस्टैंड योर ओन लाइकनेस, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड देन ये कीजिए, आपका प्रोग्रेस कीजिए. एंड आई Natum sir is always there. Even I will seek as I will continue my preparation. I will seek his guidance, continue to seek his guidance. And also I will be available with Natum Doke sir whenever there. If I'll see how much time I have along with my preparation and my job, I cannot compromise any of them. So I'll see. Time to time I might come and help Natum Doke sir in taking his classes also sometimes. So I'll try to do that. Firstly, let me see how much time I will have after joining. So speak with Natum Doke sir and have a good mentor. इसमें इतना ज्यादा ये नहीं है, आपको एक मेंटर अच्छे से होने से ये हो गया. वही आई वुड से दैट ओनली. Thank you very Thank much, Chibu. So you. unfortunately, I cannot open my video because there's no electricity. Okay, no चलो. problem, sir. And also, Thank. lastly, I would like to thank all of you for listening to me and listening to my story. And I hope one day all of you will shine, and all of you will do justice to our session and do justice to the our effort Natum Doke sir has made, and even small from my side. So आप लोग सीखिए, and I'm very sure कि आप लोग भी एक ये मैं आप लोग का अगर परसिवियर करता है, व्हेन यू डिजर्व, देन आई एम श्योर कि आप ये करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली. इट वाज वेरी जॉय एंड आई एम वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी to share this moment with all of you. Thank you so much. Good night. Thank you very much. Thank Thank you you. very much. Okay.